Our today's session is on the very latest standard of ISO 21001, that is Educational Organization Management System. And this is a part of Certified School Manager certification because it is very essential that our school manager should know what the latest standard is about educational institutes, how they can form their educational management system, how they can develop and improve their educational management system. The course is being offered by Multiplied, who is serving education section in Pakistan and abroad, offering education services to schools in continuous professional development, e-learning ecosystem development, school quality editing and certification, served ministries of education in Dubai, Abu Dhabi, Oman, Qatar, education authorities in Pakistan, Malaysia, and many other countries, serving as a partner organization as certified training partner with American Professional Certification Services, Dallas, USA, working with Microsoft Gold Partner and Google for Education since many years. And Multiplier is offering this course in collaboration with co-partner of eProx, that is Quality Systems International. Quality System International is a research institute and a center of excellence to promote management system practices in Pakistan, Turkey, USA, and Japan. Institute is providing customized training, organizational assessment, consulting, and professional certification services to educational, healthcare, government services, manufacturing, and many other sectors. And Quality System International is offering US certified ISO 21001 Education Organization Management System auditor, lead auditor certification. And I want to share with you that QSI will be the first organization in Pakistan that we are offering ISO 21001 UMS lead auditor course. And this lead auditor course, you may know that it is the highest auditor related certification in Pakistan. And USA certified educational excellence assessor uh, practitioner in collaboration with San Diego State University. That is also the certification of QSI. Uh, Please take me one chat. And USA certified daily management, lean management professional certification, and Quality System International is also offering certified healthcare, safety, environmental management system certifications. And इसके अलावा भी हम काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन जो हैं ऑफर कर रही हैं, लाइक सर्टिफाइड क्वालिटी एनालिटिक्स प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशंस हैं जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और सर्टिफाइड मास्टर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सर्टिफिकेशन जो है, ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी यूएसए का जो क्वालिटी की एक लीडिंग अथॉरिटी है, उसके बॉडी ऑफ नॉलेज, इनके कोलेबोरेशन के एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन है बियॉन्ड लीड ऑडिटर कोर्स। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में इन फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान QSI ऑफर करेगा ISO 21001 लीड ऑडिटर कोर्स। और ये क्रेडिट भी QSI को जाता है कि दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, ग्लोबली आप इसका नेट से डेटा उठा के देख सकती हैं कि ISO 21001 UMS पे सबसे पहली ट्रेनिंग QSI ने एट द सेम टाइम पाकिस्तान, जापान, USA और टर्की में स्टार्ट की विद द सेम डेट्स। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि उस ट्रेनिंग में जो तकरीबन मोर देन 100 पार्टिसिपेंट थे। और ये उन दिनों की बात है जब 2008 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कोविड कहीं करीब करीब भी नहीं था, उसके 2 साल बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कोविड वाला। उस वक्त पाकिस्तान की ही एक खातून जो एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक थी, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ, तो उन्होंने ग्लोबली उनकी फर्स्ट पोजीशन थी ISO 21001 में।
और वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में टीच भी करती थी। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के क्वालिटी डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी काम कर रही थी। तो उन्होंने ग्लोबली जापान, टर्की, यूएसए में मोर देन 100 पार्टिसिपेंट थे, और उस पे क्यूएसआई ने उनको फिर लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सर्टिफिकेशन ऑफर की उनके लिए। फिर इसी तरह के अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी था, और क्यूएसआई के चैनल पे उनका इंटरव्यू भी किया गया। तो ये भी ऑनर पाकिस्तान को जाता है। तो क्यूएसआई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, जापान और टर्की के साथ एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च सेंटर रजिस्टर्ड है। और क्यूएसआई में आपको ये बताता चलूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन इज लेड बाय प्रोफेसर डॉक्टर शूजी शिबा। प्रोफेसर डॉक्टर शूजी शिबा कंसल्टेंट हैं, क्वालिटी के गुरु हैं, जापानीज हैं, और मोर देन 3 4 5 ऑर्गेनाइजेशन को ये हेड कर रहे हैं। और ए प्रॉक्स अमेरिकन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज भी प्रोफेसर शूजी शिबा किया है। क्यूएसआई का एक अलग से मैंडेट है जो कि मैनेजमेंट सिस्टम की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ये भी प्रोफेसर साहब की है, और प्रोफेसर साहब भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। और इसके अलावा क्रिस हेज जो कि सीईओ इम्पैक्ट परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस हैं, वो भी डायरेक्टर क्यूएसआई है। क्यूएसआई रन्स जापान सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्लोबली, वो भी हम रन करते हैं, खास करके लीन सिक्स सिग्मा और 5S फॉर स्कूल्स, 5S फॉर एजुकेशन सेक्टर, उसमें हमारे जापान से एक्रेडिटेशन हैं। और क्यूएसआई कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग टू मेक पाकिस्तान ए हॉलमार्क ऑफ क्वालिटी एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। और ये क्यूएसआई की वेबसाइट है www.qualitysystemsinternational.org। आज का हमारा ये सेशन जो होगा ये बड़ा ब्रीफ सा सेशन है, क्योंकि इसके बाद हमारे मल्टीप्लाइड के साथ क्यूएसआई एंड मल्टीप्लाइड आर ऑफरिंग ISO 21001 लीड ऑडिटर कोर्स नेक्स्ट मंथ में जो होगा। और इसके अलावा भी हम ISO 21001 का प्रैक्टिशनर लेवल का कोर्स 3 डेज का, वो भी जो है इंशाल्लाह रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद वो ऑफर करेंगे। और रेगुलर हमारा फाउंडेशन 2 डेज का और फुल 1 डे का इंट्रोडक्टरी कोर्स, वो तो ऑलरेडी हमारे चलते रहते हैं। तो सिंपली आज का जो कोर्स है वो एक ब्रीफ ओवरव्यू है इसका पूरे कोर्स का कि ISO 21001 है क्या। मेरा नाम है और मैं एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यूएसआई काम कर रहा हूँ क्वालिटी सिस्टम इंटरनेशनल प्रोफेसर डॉक्टर शूजी शिबा के साथ एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि है। और इसके अलावा मैं ISO की जो टेक्निकल कमेटीज हैं जिनके जिम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है, जिस तरह से एक उनकी कमेटी है ISO टेक्निकल कमेटी 176 जो कि ISO 9001 बड़ा रिनोन स्टैंडर्ड है, आपने सुना होगा ISO 9001, उसकी कमेटी TC 176 है। पाकिस्तान से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। पाकिस्तान से उसके 4 हम मेंबर्स हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर से आप कह सकते हैं ओनली आई एम रिप्रेजेंटिंग, और 3 अदर्स मेंबर जो हैं वो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, उसके वो डायरेक्टर और उसके डायरेक्टर जनरल, वो 2 उसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा प्रोग्राम कमेटी, प्रोजेक्ट कमेटी 288, जिस कमेटी ने ISO 21001 स्टैंडर्ड डिज़ाइन और डेवलप किया है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। और मैं फेलो हूँ अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी का। और इसके अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी जो क्वालिटी के एक लीडिंग अथॉरिटी है, उसके टेक्निकल रिव्यू बोर्ड मेंबर हूँ फॉर क्वालिटी प्रोग्रेस मैगजीन। और इसमें क्वालिटी प्रोग्रेस मैगजीन में केस स्टडीज, एजुकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ भी आप क्वालिटी की फील्ड में हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस की फील्ड में हैं, तो ये केस स्टडीज उसमें पब्लिश होती हैं। और अगर आप मल्टीप्लाइड या क्यूएसआई या मल्टीप्लाइड के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको इसकी केस स्टडीज फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जो है ना ऑफर कर सकते हैं। और इस केस का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसका भी ये पार्ट है। इसके अलावा मेरा इनका UK रजिस्टर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 का मैं लीड ऑडिटर हूँ, ISO 21001 का मैं लीड ऑडिटर हूँ, सर्टिफाइड क्वालिटी इंजीनियर और क्वालिटी प्रोग्राम मैनेजर फ्रॉम ASQU से सर्टिफाइड हूँ मैं। और सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट प्रोफेशनल हूँ फ्रॉम सिंगापुर, और सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल हूँ मैं HR
एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन है, टेक्निकल बोर्ड मेंबर एशियन नेटवर्क फॉर क्वालिटी, एग्जीक्यूटिव स्टाफ मेंबर प्रोफेसर शूजी शिबा, ब्रेक थ्रू मैनेजमेंट उनका फोरम है साउथ एशिया में, एडजेंट फैकल्टी मेंबर हूँ, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑपरेशन मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स, टीपीएम, टीक्यूएम, टीपीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ सुकोबा जापान, नस्ट पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं क्वालिटी से रिलेटेड, बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड ये सब्जेक्ट में और ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट को मैं फैसिलिटेट करता हूँ। ओवर 20 years का मेरा एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन सिक्स सिग्मा, स्टैंडर्डाइजेशन, HR and business analytics, risk management, supply chain management in various industries, services sector as trainer, consultant, analyst और professional. मैंने मास्टर्स किया था प्रीवियसली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके बाद MS टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया और फिर मैंने PhD क्वालिटी एनालिटिक्स में। आज का जो हमारा सेशन है इसकी की ऑब्जेक्टिव्स जो आपके भी ज़हन में होगा कि ये है, ये कोर्स किस लिए है, सेशन ये किस लिए है, क्या क्या ये हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करेगा। हमारा ये सेशन जो होगा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरह से ISO के स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, अनेक्चर SL हाई लेवल स्ट्रक्चर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो ISO ने 2012 में इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या पर्पस है, ISO 21001 ई सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्योंकि कोई भी जब स्टैंडर्ड डेवलप होता है, चाहे वो 9001 है, 14001 है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसी तरह वेरी रिसेंट स्टैंडर्ड यही है 21001, इसके बाद भी के 2-3 स्टैंडर्ड और आए हैं, तो इनका ये किसी ना किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो ISO 21001 के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डेली ऑपरेशन मैनेजमेंट, हमारा ये कोर्स जो कंप्लीट कोर्स ISO 21001 का है, इसको जो अदर ऑर्गेनाइजेशन से एज ये है क्योंकि जापानीज जो हैं वो डेली मैनेजमेंट में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जापानीज में जो जितने भी जापानीज या जापानीज ओरिएंटेड प्रोफेशनल या अमेरिकन जो हैं, वो जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका ज्यादा फोकस होता है डेली ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि जब आपने डेली प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज कर लिया तो फिर ही आपके सिस्टम्स में, आपके प्रोसेसेस में, एक्टिविटीज में आपके इनोवेशन आती है। तो पहले हम सीखेंगे, बताएंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डेली ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये कंप्लीट कोर्स है, इसके ऊपर 12 गोल्डन रूल्स हैं डेली ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। फिर ISO 21001 रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस, फिर मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिसेस, किस किस्म की प्रैक्टिसेस इसमें हैं, कौन कौन किस प्रैक्टिसेस हम किस तरह से अपने अपने स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की प्रैक्टिसेस को बेटर, उनकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं, उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस लेके आ सकते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स के लिए चैलेंजेस क्या आएंगे जब ये स्टैंडर्ड्स को हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, कौन से चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ेंगे, कौन कौन सी हर्डल्स होंगी, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और आउटकम्स इसकी क्या होंगी, क्योंकि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, उसकी आउटकम, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड रिजल्ट्स क्या हम अचीव करें। इसका पर्पस इस स्टैंडर्ड का ये है कि हम इन ए मच बेटर वे अलाइन कर सके अपनी पॉलिसीज जो कि मिशन और विजन की बेसिस पे बनती हैं विद ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारे डेली टारगेट्स है, जो कि हमारे मंथली टारगेट्स हैं। हमने देखा है कि हम पॉलिसीज हमारी कुछ और कह रही होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स या तो बिल्कुल सेट नहीं किए जाते, या अगर हमने सेट किए होते हैं वो उसका कोई लाइजोन हमारी पॉलिसी के साथ नहीं होता, क्योंकि पॉलिसी को एक ट्रेंड ये बन गया है कि हमने गूगल किया कि क्वालिटी पॉलिसी, तो गूगल पे हमने देखा कि क्वालिटी पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हैं, उन पॉलिसीज को हमने अडॉप्ट कर लिया। अब उन पॉलिसीज का हमारे अपने स्टाफ मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉइज को कोई पता नहीं, कोई हमारी हिस्ट्री से वो रिलेटेड नहीं है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है, तो उन पॉलिसीज में से ऑब्जेक्टिव्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो उसी तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे ना जब हमें उसका पता होगा, उन पॉलिसीज का, उनके ऑब्जेक्टिव्स का।
और एक्टिविटीज, हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको हमने कैसे अलाइन करना है अपनी पॉलिसीज के साथ, और कैसे इफेक्टिवली हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं लर्नर्स की नीड को, एम्प्लॉयर्स की नीड को, और जो की स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आईएसओ के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अनेक्सर एसएल के बाद ये जो आईएसओ का स्टैंडर्ड ईयर 2012 के बाद जो उसमें मेगा रिवीजन आई हैं उसमें स्टैंडर्डाइज कर दिया आईएसओ ने अपने स्टैंडर्ड्स का पैटर्न भी, उसमें स्टैंडर्डाइज क्लासेस हैं, स्टैंडर्डाइज नंबर ऑफ क्लासेस हैं। तो में उसमें रिक्वायरमेंट्स बैलेंस्ड वे में हमने दिए कि स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लर्नर्स हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, इसके अलावा एम्प्लॉयर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं, उनकी तमाम नीड्स सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको बैलेंस करते हैं। Consistent processes and evaluation tools to demonstrate and increase effectiveness and efficiency. Then increase credibility of the organization. A means that enable education organization to demonstrate their commitment to effective quality management practices. अब हम अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिसेस, क्वालिटी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट का कल्चर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने कल्चर को बेटर वे में अलाइन कर सकते हैं कि वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किस तरह से हम लेके आ सकते हैं। हार्मोनाइजेशन ऑफ नेशनल एंड प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स विद इन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक्रीडेशन से रिलेटेड जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्योंकि मच बेटर वे में उनसे अवेयर हैं। तो अब इसी तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि पहले स्कूल्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस तो अवेलेबल थी कि अगर कोई स्कूल की इंटरनेशनल चेन है, उस चेन ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने एसओपीज, अपनी पॉलिसीज, अपने फ्रेंचाइज या अपने फॉरेन ऑफिस के लिए बनाई होती थी, उनको हम स्टडी कर लेते थे। लेकिन उसके बाद जो छोटी चेन्स हैं, जो अदर स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। उसके लिए आईएसओ 9000, आईएसओ जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, इसने ये स्टैंडर्ड डेवलप किया है कि किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम स्मॉल साइज टू अ बिग यूनिवर्सिटीज, किस तरह से वो अपनी प्रैक्टिसेस को हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़ी अशद ज़रूरत थी कि हमारे पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम होता। इससे पहले इंटरनेशनल वर्कशॉप एग्रीमेंट 2007 का था, उसके बाद फिर कुछ स्टैंडर्ड डेवलप हुए। अब ये स्टैंडर्ड आईएसओ 21001 का जो डेवलप हुआ है, इसमें स्कूल मैनेजर बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड करके अपने से रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये स्टैंडर्ड आईएसओ के स्टैंडर्ड्स की ब्यूटी ये है कि जिससे मैंने आपको बताया कि चाहे कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई स्कूल किसी बहुत ही रिमोट एरिया में वर्किंग कर रहा है, चाहे कोई स्कूल जो है वो अमेरिका के किसी एडवांस सिटी में है, सैन डिएगो में है, न्यूयॉर्क में है, या जापान में वो टोक्यो में काम कर रहा है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट हर एक पे एप्लीकेबल है। कोई स्कूल इस तरह नहीं कह सकता कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। विद इन देयर ओन रीच, विद इन देयर ओन रिसोर्सेज, इस स्टैंडर्ड को वो टेकअप कर सकते हैं और इसके ऊपर अपना सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज जो आई है इस आईएसओ 21001 स्टैंडर्ड में, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मल्टीप्लाइड को कि जिन्होंने ये सर्टिफाइड स्कूल मैनेजर के करिकुलम में इसको आईएसओ 21001 को पार्ट बना दिया। क्योंकि स्कूल मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे, मेरी फैकल्टी पे, सीनियर मैनेजमेंट पे, ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे, डेली एक्टिविटीज को पे किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे कैसे ये स्टैंडर्ड हमें गाइड करेगा कि हम अपने डेली एक्टिविटीज में से, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में से, अपनी पॉलिसीज में से इन अ मच बेटर और इजी वे में हम अपने 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 गोल्स और टारगेट सेट कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बड़ा ये इजी है कि स्टैंडर्ड सेट करना, वेस्टेज से रिलेटेड वेस्टेज को रिड्यूस करना। तो जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अब इस स्टैंडर्ड के बाद उसमें क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि जब आपने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड को
कहीं से रीड आउट कर लिया है, कहीं से आपने इसकी कोई फैसिलिटेशन कोचिंग सर्विसेज ले ली हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अब ये मेरा रोल था, ये मेरी जॉब थी, और अब मैंने इसमें से अपने केपीआईज, अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अपने गोल्स को मैंने एक्सपेक्ट करना है। और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और आपके स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो भी इनहेंस होगी। वाइडन पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, जब तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज, ये भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपने सेट इंटरवल्स के ऊपर, वो आप इंटरवल आपके अपने स्कूल की पॉलिसी है कि विद इन आफ्टर अ फोर्टनाइट, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ क्वार्टर, कब आप उसके मैनेजमेंट रिव्यूज की मीटिंग्स कॉल करती हैं तमाम अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए। तो उसमें पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज की उसमें वाइड हो जाती है, उसमें ब्रॉड पार्टिसिपेशन आ जाती है, उसमें उनकी फीडबैक, उनकी सजेशंस, उनकी रिकमेंडेशंस, और उनसे स्कूल से रिलेटेड, स्कूल ऑपरेशन से रिलेटेड जो जो इम्प्रूवमेंट्स करनी है, कोई कंप्लेंट्स हैं, तो वो इसको मच बेटर वे में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन, और ये स्टैंडर्डाइजेशन, बाज लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड, जब हमने कोई स्टैंडर्ड हमने अडॉप्ट कर लिया तो फिर तो हम वो बिल्कुल एक रूटीन का काम हमने कर लिया कि डेली बेसिस पे हमने वही करना है, तो उससे फिर वो इनोवेशन के लिए सबसे बड़ी हिंड्रेंस है स्टैंडर्ड। तो इस तरह की कोई इशू नहीं है, क्योंकि अक्सर मुझे ट्रेनिंग्स में ये सुनने को मिलता है कि ये स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड्स आर अ बिग हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इनोवेशन। तो स्टैंडर्ड कोई हिंड्रेंस नहीं, स्टैंडर्ड तो आपको बेटर वे में इक्विप करता है कि आप कैसे इनोवेशन लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस, आपकी एक्टिविटीज स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो कैसे आप ये कर लेंगे, कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। थोड़ी सी मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी अजान की। पीपल ये हमें इक्विप करता है कि हम कैसे नॉलेज, स्किल्स और कंपिटेंसीज, जो डेली वर्क रिलेटेड उनकी कंपिटेंसीज हैं अक्रॉस द वर्क फोर्स, उन कंपिटेंसीज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम असेस कर सकते हैं कि मेरे स्कूल में, कि स्कूल मैनेजर ने, स्कूल के डायरेक्टर ने असेस करना है कि मेरे स्कूल में एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज क्या है। इसके लिए इसमें स्किल मैट्रिक्स डेवलप होती हैं आईएसओ 21001 में। एग्जिस्टिंग स्किल मैट्रिक्स हैं क्या, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कूल, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, वो क्या है, ग्लोबल सिनेरियो में कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, कौन से गैप हैं। ये जस्ट लाइक पीडीसीए साइकिल है, प्लान डू चेक इट। आपने प्लान किया, फिर उसकी एग्जीक्यूशन आप ऑलरेडी अपने स्कूल्स में, आप जितने भी सर्टिफाइड जो स्कूल मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ये कर रहे होते हैं जो एग्जीक्यूशन, जो भी उनकी प्रैक्टिस है उनको एग्जीक्यूट किया। तो अब हमने देखना है कि आपके आईएसओ 21001 जो स्टैंडर्ड है उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमारे स्कूल में कंपिटेंसीज का गैप कहाँ कहाँ पे है, ये हमने चेक स्टेज पे, सी पे इसको आइडेंटिफाई करना है, और इसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना है कि उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब दूसरे नंबर पे है प्रोसेस, एड्रेस द बिजनेस नीड्स और वर्क फोर्स की कंपिटेंसीज नीड, इनको हमने मैच करना है कि पीपल और प्रोसेस की नीड्स में क्या क्या गैप्स हैं, प्रोसेस किस तरह से प्रोसेस बने। हम लोग बात करते हैं सिस्टम्स की, उसमें हम बोल जाते हैं कि सिस्टम के स्टैंडर्ड हम बड़े मेगा स्टैंडर्ड हम सेट कर लेते हैं कि सिस्टम को हमने डेवलप करना है। तो जब तक हम प्रोसेस लेवल पे नहीं आएंगे और प्रोसेस के बाद डेली एक्टिविटीज पे नहीं आएंगे, तो कभी भी हम स्टैंडर्ड वो सेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, उसकी हमें अवेयरनेस हो, उसके सीक्वेंस की अवेयरनेस हो, फिर उससे रिलेटेड हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, गोल्स हम सेट करेंगे। और फिर है टेक्नोलॉजी, एड्रेस द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह से कोविड में जिन जिन स्कूल्स ने बड़े अच्छे तरीके से इस नीड को असेस किया कि अब मैंने अपने सर्विसेज को किस तरह से एक्सपेंड करना है, अब मैंने अपनी सर्विसेज को कैसे डिलीवर करना है, कैसे स्प्रेड करना है, क्योंकि फिजिकल कॉन्टेक्ट अब पॉसिबल नहीं है। तो
हमने उसमें टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया, address the tools and technologies used to communicate and make the efficient work। और एंड पे है कल्चर। कल्चर ये एक एनवायरनमेंट है इन विच प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, पीपल उन टूल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लर्नर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो इसलिए ये ISO 21001 एक बेटर सिस्टम है कि ये अलाइन करता है, इज अलाइन टू अचीव और हाईएस्ट प्रायोरिटीज हमारी हैं क्या, अनेबल पीपल टू गेट देयर बेस्ट, लोगों से किस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करवा सकते हैं। ये ब्लेम एवरी टाइम हम अपने एम्प्लॉइज को देते हैं कि एम्प्लॉइज हमारे टैलेंटेड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। तो क्या उसमें उनमें क्या स्किल आनी चाहिए? क्या हमने कभी उनको ये बताने की कोशिश की? एवर वी हैव ट्राइड दैट? और फिर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लीडर, कि अगर कोई किसी वक्त आपके स्कूल डायरेक्टर नहीं है, स्कूल मैनेजर भी नहीं है, तो किस तरह से तमाम स्कूल में जितने भी हमारे हेड्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, हर एक अपना 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 काम उसी तरह से करता रहे। तो ये एक्चुअली ISO 21001 स्कूल मैनेजर्स को इसमें इक्विप करेगा कि आपने सिस्टम एक डेवलप कर देना कि डायरेक्टर अगर 1 वीक के लिए स्कूल में नहीं है तो स्कूल की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर स्कूल मैनेजर कुछ 2 डेज या 4 डेज के लिए किसी ट्रेनिंग पे गए हैं, किसी ऑडिट में बिजी हैं, किसी और न्यू प्रोजेक्ट स्कूल ने शुरू किया है उसमें स्कूल मैनेजर बिजी हैं, तो ये ना हो कि उसके बाद फिर उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो उसी तरह से जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वो काम उनका बर्डन अप हो जाता है और उसके बाद आके उनको नेक्स्ट 2 वीक्स में वो उसी को वो निपटाने के डील करने के चक्कर में रहते हैं। कल्टीवेट प्रोडक्टिव कल्चर और इंटर रिलेट प्रोसेसेस को कैसे उसको हमने इंटरलेट करना है, उनका इंटर रिलेशन क्या है। तो अब आपने ये 4 एलिमेंट्स, टेक्नोलॉजी, पीपल, प्रोसेस और कल्चर, इसको अगर मैंने जो इसमें सम अप किया है तो ये ISO 21001 स्कूल मैनेजर्स को फैसिलिटेट करेगा। और इसके जो कंप्लीट कोर्स है वो फैसिलिटेट करेगा 3 P's में, पीपल, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। और इसी का इंटरेक्शन, कोई भी स्टैंडर्ड जो ISO का डेवलप होता है उसमें यही यही 4 एलिमेंट्स हैं, 3 P's जो है, पीपल, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स, इनका इंटरेक्शन। जिस स्कूल ने, जिस यूनिवर्सिटी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंटरेक्शन को समझ लिया तो ये कभी हो नहीं सकता कि उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज या उसके स्टूडेंट्स किसी भी आगे फील्ड में वो फेल हो। तो ये आपने इसका इंटरेक्शन बेसिकली, ये स्टैंडर्ड जितने भी ISO के हैं वो हमें ये 3 P's का इंटरेक्शन, 3 P's के गैप आइडेंटिफाई करके हमें देता है। और इसी तरह से ये स्कूल मैनेजर भी जब ये कंप्लीट कोर्स या लीड ऑडिटर के लिए कंसिडर करेंगे कि जो लीड ऑडिटर कोर्स ISO 21001 का अप्रैल में होने जा रहा है, तो उसके लिए जब आप कंसिडर करेंगे 5 डेज का, तो उसमें ये सारे टूल, टेक्निक्स, केस स्टडीज, ये सारी की सारी इसमें डिस्कस होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन, ISO IEC directives, consolidated ISO supplement describe in detail the following stages। एक स्टैंडर्ड जब डेवलप होता है वो किस तरह से डेवलप होता है, जो इसी को आप देख सकते हैं ISO 21001 जब डेवलप होगा तो सबसे पहले उसकी नीड एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसकी नीड आइडेंटिफाई की जाती है। उसके ऊपर जिस तरह से इंटरनेशनल वर्कशॉप एग्रीमेंट है कि वर्कशॉप एक हुई, उसमें तमाम एजुकेशनिस्ट लीडर्स जो हैं उनको कॉल किया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन प्रोसेसेस की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए एक अलग से कस्टमाइज्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि ISO 9001 जो है वो एक जेनेरिक स्टैंडर्ड, एक हॉस्पिटल पे भी एप्लीकेबल है, एक टेक्सटाइल यूनिट पे भी एप्लीकेबल है, एक लॉजिस्टिक फर्म पे भी एप्लीकेबल है, उसी तरह इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल है, और वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो ये नीड फेल्ट की गई कि जिस तरह से मेडिकल डिवाइसेस का, जिस तरह से अदर सेक्टर्स का, ऑटोमोटिव सेक्टर का अपना एक अलग से स्टैंडर्ड है जिसमें उस फील्ड से रिलेटेड एलिमेंट्स या इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, तो हमारा भी जो स्टैंडर्ड है ISO 21001 वो भी एजुकेशन से रिलेटेड वो है। अभी तक आपका कोई प्रीवियस जो स्लाइड हमने अभी तक कोई डिस्कशन की है
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। और उसके बाद हम उसको अनम्यूट कर देंगे जो हैंड रेज करेंगे। जी, तो उसकी बेसिस पे फिर एक प्रीलिमिनरी वर्क आइटम PWI ये डेवलप हुआ। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये एक तो कब डेवलप हुआ, किस ईयर में ये आया है आईएसओ, और दूसरा ये कि क्या स्कूल्स के अलावा ये सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पे भी एप्लीकेबल है, और क्या अभी पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है, अप्लाई कर रहे हैं टर्शियरी एजुकेशन सिस्टम्स? थैंक यू। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने पूछा कि ये ISO 21001 कब आया। तो जिस सब मैंने इनिशियली बताया था, शायद उसमें मैं ये जो है ना वो बताना भूल गया कि ये मई 2018 में ये स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया था, ISO 21001। और उसके बाद जो यही मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, तो उससे उससे पहले ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये जो 6 स्टेज है पब्लिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IS, तो ये ISO 21001 UMS का जो IS वर्जन था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये मई 2018 में ये पब्लिश हुआ। और ये स्टैंडर्ड जो है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी लेवल के भी हों, जो एजुकेशनल सर्विसेज, चाहे वो कोचिंग सेंटर हैं, चाहे वो कोई एकेडमीज हैं, चाहे वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, जो आपने पूछा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये सब पे एप्लीकेबल है। चाहे वो मेडिकल की फील्ड में है, एजुकेशन दे रही हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एजुकेशन को स्प्रेड कर रही हैं, वो इसकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और ये बिल्कुल पाकिस्तान में भी इसको QSI जो है, इन कोलैबोरेशन विद मल्टीप्लाइड, ये सर्विसेज हमने लॉन्च कर दी हुई हैं। अभी कुछ दिनों में मे भी जो है मल्टीप्लाइड इसको लॉन्च ऑफिशियली लॉन्च कर दे। लेकिन इसको हमने लॉन्च कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान में इसकी सर्टिफिकेशन आप QSI और मल्टीप्लाइड से वो ले सकते हैं, कोई भी स्कूल। और वो कस्टमाइज सर्टिफिकेशन आफ्टर असेसमेंट, उसमें रेटिंग भी आपको दी जाती है, उसमें एक थारो उसका असेसमेंट होगी। और फिर उसकी मेगा आपको रिपोर्ट जो है वो हमारे ऑडिटर्स जो हैं, एक्सपर्ट ऑडिटर्स जो हैं, वो सेंड करेंगे, जिसमें रिकमेंडेशन होंगी फॉर इम्प्रूवमेंट। और इसमें ये जरूरी नहीं होता कि आप का अदारा, अगर आपने बड़ा अच्छा काम किया है तो फिर उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। अदरवाइज कुछ लोग ये कहते हैं, इसमें बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर मुझे सर्टिफिकेट ही नहीं मिलना तो मुझे फायदा क्या है। तो सर्टिफिकेट पर्पज नहीं आपका होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जो ऑडिटर्स की, हमारे ऑडिटर्स की जो आपके पास रिपोर्ट जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये जो 3 P's हैं, इनसे रिलेटेड होगी कि आपके गैप्स कहाँ कहाँ पे, उनको आप ब्रिज करें। उसके बाद फिर उसकी अगर कोई खुदा न खास्ता आपके सिस्टम में कोई मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी आ जाती है जिसपे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो उसके बाद उस नॉन कन्फॉर्मिटी पे आप एक्शन लें। 15 डेज 30 डेज के बाद दोबारा से असेसमेंट आपकी होगी। अगर आप वो गैप एड्रेस कर लेते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट जो है आपका अप्रूव हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं पाकिस्तान में। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी लेवल का भी स्कूल, एकेडमी, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग एंड सेंटर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे इसमें कॉन्टेक्ट किया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, बिजनेस हैं, जो उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है उसकी वो सर्टिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि जी इसको हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं। हम अपने सिस्टम को, अपने डेवलपमेंट सेंटर को हम ISO 21001 की रिक्वायरमेंट पे उनके साथ हम काम कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाइड और QSI मिलके। तो ये बिल्कुल इसमें मई 2018 में, सॉरी 18 में ये पब्लिश हुआ था स्टैंडर्ड। और काम इस पे जो स्टार्ट हुआ था वो 2007 में, जिस तरह मैंने आपको बताया उसमें। तो ये PWI प्रीलिमिनरी वर्क आइटम बना। उसके बाद फिर प्रेपरेटरी फेज पे आ जाता है, जिसपे जब ये ISO इस पे काम शुरू करता है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो वर्किंग ड्राफ्ट इसका क्रिएट होता है।
वर्किंग ड्राफ्ट क्रिएट करने के बाद उस पर एक कमेटी फॉर्म होती है जो कि एक्सपर्ट की कमेटी, उसमें आप भी आ सकती हैं पाकिस्तान में, अगर आपने इसमें अच्छा काम किया है तो आप भी उस कमेटी के, पाकिस्तान की उस कमेटी के मेंबर हो सकती हैं। तो वो वर्किंग ड्राफ्ट फिर ये वर्किंग ड्राफ्ट जो है ये एक्सपर्ट इसको बनाते हैं। फिर ये जो कमेटी फॉर्म की होती है पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली आईएसओ के जो 180 या 188 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, और पाकिस्तान में, और ये हर जगह पे इसमें कंपल्शन ये होती है कि आईएसओ के जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसकी मेंबर नहीं बन सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। अच्छा सर, मैं ना एक हाइब्रिड एजुकेशन प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा हूँ। फिज़िकल एजुकेशन से थोड़ा सा हटके है, तो उसमें हम बच्चों को जो है ना वर्चुअली और कुछ मटेरियल देके ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग पे फोकस हूँ मैं, और उसमें एक प्रॉपर इसको चेन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो क्या ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो सर्टिफिकेशन है, ये मेरे लिए भी पॉसिबल है कि मैं अपने इदारे को भी ऑडिट करवाऊँ? असेसमेंट करवाने के बाद अब मुझे जो रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं उस पर पूरा उतरूँगा, तो फिर मुझे जो है ना 2021 जो है ना वो सर्टिफिकेट। जी जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। बिल्कुल, ये अभी हम नेक्स्ट 2 डेज जो आज और कल इसमें फर्दर भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ये हाइब्रिड एजुकेशन का जो आप मॉडल देना चाह रही हैं, और इस स्टैंडर्ड ने ये कोविड से 2 साल पहले जो लॉन्च हुआ है, तो इससे पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज में, या जो हमने सेशन स्टार्ट किए जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने वो अटेंड किए 2018 में 19 में, उनको पता था। इसके बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया, तो ये स्टैंडर्ड इन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है कि एक तो है ना स्पेशल पर्सन की नीड एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसमें डिस्कस था कि स्पेशल नीड्स ऑफ द लर्नर, कि उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी, ट्रेनर्स को भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट प्रोसेस में था, तो लोग हमें कहते थे कि जी क्यों कोई स्कूल ना जा सकेगा। तो हम जब ट्रेनिंग में करते थे कि कोई सिनेरियो ऐसा आ जाए कि आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है, तो फिर आप एजुकेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे आप इसके साथ जो है ना राइट वे में इसको डिलीवर कर पाएंगे, कैसे आप बैलेंस्ड वे में कि आपका जो लर्नर है वो भी सेटिस्फाइड हो, आपके लर्नर और आपकी फैकल्टी में एक जो है कोहेजन हो जाए, और उसमें कोई कंफ्लिक्ट ना रहे। ये ना हो कि लर्नर की आवाज़ आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, लर्नर जो ये इश्यूज आए भी हैं, लेकिन जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ISO 21001 पे काम किया है, उन्होंने इन इश्यूज को रिजॉल्व किया, इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन की, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। तो ये हाइब्रिड एजुकेशन पे ये इक्वली एप्लीकेबल है। आप भी इसकी स्टैंडर्ड इसकी सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, और आपके अब ये इसको फील भी करेंगे, देखेंगे भी कि इसकी सर्टिफिकेशन करवाने के बाद ISO 21001 की आपकी आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें वैल्यू एडिशन आ जाएगी, उसमें ये वैल्यू ऐड करेगा। इसके बाद जी हम बात करते हैं वर्किंग ड्राफ्ट की। इसके बाद वर्किंग ड्राफ्ट जो है कमेटी जो फॉर्म होती है हर कंट्री में, जो उसकी नेशनल बॉडी है। जी, और का कोई क्वेश्चन है? Suhail साहब is unmuted. Suhail Anjum साहब. जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 2018 में इसकी प्रिलिमिनरी वर्किंग हुई, अब ये इनेक्ट हो गया है। क्या पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी ने इस स्टैंडर्ड के नीचे सर्टिफिकेशन हासिल की है या करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल पाकिस्तान में इसका हमने जैसा मैंने बताया कि QSI वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये दुनिया में इसकी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। इसी तरह से पाकिस्तान को भी ये ऑनर या एज है कि पाकिस्तान ने मार्च 2018 में हमने इसमें 2 डेज के कोर्सेज, फिर 3 डेज के कोर्सेज इसके लॉन्च किए। तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने इस पे काम किया, मल्टीप्लाइड और QSI ने मिलकर। तो उनके सिस्टम इसी स्टैंडर्ड पे अब डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त इसकी स्टैंडर्ड की कोविड से पहले
क्योंकि ये भी एक आता है इम्प्रूवमेंट के लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आप अपने एक्टिविटीज को किस तरह से गैप फ्री, एरर फ्री बना सकती हैं। तो उससे पहले तो मे भी लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं था। तो अब ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर हमने ये नोट किया है कि इसकी सर्टिफिकेशन में जो लोग पहले बड़ा स्लोली काम कर रहे थे, तो अब इसमें काफ़ी एक्सपीडाइटेड वे में काम हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर आई थिंक मोर देन 20-25 यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी क्लोज टू देयर सर्टिफिकेशन असेसमेंट्स। तो क्योंकि उसमें थारोली उसने चेक करना होता है, यूनिवर्सिटी ने पहले अपना गैप असेसमेंट करनी होती है, फिर हम उसका हमारे साथ वो मिलके मल्टीप्लाइड और QSI के साथ काम करते हैं, तो हम उसको गैप असेस करके उनको बताते हैं कि आप इसमें फर्दर प्रेपरेशन करें, ताकि इसमें ये ना हो कि क्योंकि ये नई चीज़ है, नया स्टैंडर्ड है, तो वर्ड ऑफ द माउथ ना बन जाए कि आपकी खुदा न खास्ता आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूट इस स्टैंडर्ड में कोई किसी किस्म का उसमें मसला ना रह जाए कि वो स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन ना ले सके। तो अभी वो इस स्टेज पे हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं, 70% 80% तक उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। अभी ड्यू टू सम कंपल्शन उनके नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो इस प्रोसेस में है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, कमेटी ड्राफ्ट पे हम थे। कमेटी ड्राफ्ट जिसका PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर काम करता है, सॉरी। तो ये ISO का मेंबर है फ्रॉम पाकिस्तान, और ये इसी में अगर किसी की ISO के किसी भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई अपनी वो रिकमेंडेशन या सजेशन देना चाह रहा होता है, तो वो PSQCA को सबमिट करवाती हैं। PSQCA उनको फिर सम अप करता रहता है, और जो भी इनकी एनुअल कोई 6 मंथली और एनुअल मीटिंग्स होती हैं ISO के अपने मेंबर्स के साथ, क्वार्टरली अब मीटिंग्स होने लगी हैं वो, तो उसमें वो जाके वो फीडबैक अपनी कंट्री की वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है। तो ये कमेटी ड्राफ्ट, जब वो एक्सपर्ट की कमेटी फॉर्म होती है, तो वो जो जो फ्यू एक्सपर्ट्स ने के मे बी ये वर्किंग ड्राफ्ट जो है 8 to 10 एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में इसको, USA में, यूरोप में, जापान में मिलके बनाया हो, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में जो कमेटीज आती हैं उसमें उसमें काफ़ी चेंजेस आती हैं वर्किंग ड्राफ्ट में। तो वो कमेटी ड्राफ्ट आ जाता है, जो कि जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ISO का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो होता है, ये कमेटी ड्राफ्ट होता है, जो कि तमाम मेंबर्स के कंसेंसस के साथ इसको बनाया जाता है। फिर इसके बाद जनरल पब्लिक या जनरल यूजर्स की फीडबैक लेने के लिए ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड DIS वर्जन आ जाता है। और इसमें जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2007 में IWA बना। तो नॉर्मली ISO का जो स्टैंडर्ड है, जिसका ISO 9001 जो कि काफ़ी मेजोर स्टैंडर्ड है, उसमें हम देखते हैं तो उसमें 5 to 7 years लगते हैं स्टैंडर्ड को डेवलप होने। जिस तरह से ISO का ये 2015 वर्जन है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अभी इसके ऊपर रिवीजन का प्रोसेस फ्रॉम द लास्ट 2 years इसके ऊपर स्टार्ट हो गया है कि जी जो इसकी 2022 दिसंबर में या नवंबर में नया स्टैंडर्ड लॉन्च होना है, तो उसका कमेटी ड्राफ्ट के ऊपर अभी काम हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरे ड्राफ्ट आएंगे। तो ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये जो होता है DIS, ये फिर तमाम जैसे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ये इनको फिर सर्कुलेट कर दिया जाता है थ्रू देयर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पाकिस्तान में PSQCA है, PSQCA उससे रिलेटेड जो कम्युनिटी है वो ड्राफ्ट उनको सेंड कर देता है, ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उनकी फीडबैक आती है। इसके बाद ये एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें ये कमेटी ड्राफ्ट और DIS में ऑलरेडी काफ़ी चेंजेस आ गई होती हैं, फिर ISO फाइनल ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड FDIS लॉन्च कर देता है। और FDIS के बाद मैंने देखा कोई हार्डली कोई फाइन ट्यूनिंग से रिलेटेड चेंजेस आती हैं, कोई मेगा चेंज या कोई इवन इंटरमीडिएट लेवल की भी चेंज नहीं आती, क्योंकि FDIS लेवल का भी अगर आपके पास किसी स्टैंडर्ड का वर्जन है तो इक्वली गुड है लाइक IS, क्योंकि उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं आनी, उसमें रिफाइनमेंट थोड़ी बहुत कोई जो है वो उसके में भी कोई क्लास पहले 4.2 थी उसको 4.4 कर दिया गया। तो इस तरह की चेंजेस, वो सीक्वेंस को एडजस्ट करने की चेंजेस आती हैं। इसके बाद फिर ये पब्लिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो किसी ने सवाल किया था कि ये स्टैंडर्ड कब पब्लिश हुआ, तो ये स्टैंडर्ड मई 2018 में IS वर्जन इसका है। IS वर्जन
तो ये स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट पेज पे आप देखते हैं तो उस पे ये ऑलरेडी गिवन होता है कि IS, जिस पे फर्स्ट पेज पे IS आएगा तो इसका मतलब होता है वो स्टैंडर्ड है। अदरवाइज इनके ऑलरेडी अगर वो ड्राफ्ट वर्जन होगा तो क्लियरली उसकी जहाँ पे ISO 21001 लिखा होगा तो उससे पहले ऑलरेडी ये DIS ISO FDIS ISO, तो ये वहां से आपको पता चल जाएगा ड्राफ्ट है। इसके बाद जब वो स्टैंडर्ड पब्लिश होता है तो फिर ये उसके साथ ISO 21001 EOMS या जो भी हो स्टैंडर्ड 9001 है तो IS उसके बॉटम पे लिखा होता है फिर में। तो ये था इसकी जी हिस्ट्री स्टैंडर्ड डेवलपमेंट की। स्टैंडर्ड्स की ISO 21001 स्कूल मैनेजर्स को इसकी क्या जरूरत है, क्यों हम ये सर्टिफिकेशन लें, क्यों हम इसका ये 2 डेज का 3 डेज का या लीड ऑडिटर कोर्स क्यों अटेंड करें। ये सबसे बड़ा सवाल है जो ट्रेनिंग में सबसे पहले लोगों के जहन में, आपने भी इसमें इनरोल किया तो आपके जहन में भी आया होगा कि ISO 21001 why we need this, why this is important for our school, for our institutes। तो आपने देखा होगा स्कूल बीइंग स्कूल मैनेजर या स्कूल डायरेक्टर्स के तौर पे प्रॉब्लम्स एंड इंसिडेंट्स इंक्रीज व्हेन न्यू एम्प्लॉइज आर हायर्ड, सीजन एम्प्लॉइज चेंजेस, जब आपके कोई फैकल्टी मेंबर, आपके कोई डीन, आपके कोई स्कूल मैनेजर रिटायर होती है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स इंसिडेंट इंक्रीज होना शुरू। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है कि ये इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम था वो पर्सन ओरिएंटेड था, वो पर्सन फोकस था, पर्सन की जो स्किल्स होंगी, पर्सन की जो उसके ट्रेड्स होंगे, वो हमारे सिस्टम को फुली उसने हाईजैक किया होता है। जब वो पर्सन जाता है, जिस तरह से कई इंडस्ट्रीज में आता है कि टेक्सटाइल में से अगर एक GM उनका जाता है तो वो पूरी स्किल पूरी टीम अपने साथ लेके जाता है। तो ये अगर इस तरह का कोई सिनेरियो स्कूल में भी डेवलप हो गया, स्कूल मैनेजर चला गया, उसके बाद आपके स्कूल की क्वालिटी डिटीरिएट हो गई है, क्वालिटी लोअर हो गई है, तो ये साफ इससे पता चल रहा है कि आपके स्कूल में कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं। वर्क प्रोसेस, क्वालिटी और आउटपुट जो है उसकी आउटकम नोटिसेबली डिफरेंट हमें नजर आती है हर दिन। कल इस क्लास में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कल उसी फैकल्टी मेंबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट मंथ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम कहते हैं लास्ट ईयर आपका बड़ा अच्छा था, अब आपका ये ईयर जो है अच्छा क्यों नहीं, पिछला सेमेस्टर बड़ा अच्छा आपने किया है, पिछली टर्म में आपने बड़ा अच्छा की, इस स्कूल मैनेजर ने ये प्रोजेक्ट, ये जो एडमिशन 2019 के थे बड़े अच्छे किए हैं, 2020 में क्या हुआ, कोविड के अलावा क्या इश्यूज आई, 2020 में बड़ा अच्छा रहा, ये कोविड भी था, बड़ा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है, 21 में क्या हो गया। तो क्वालिटी और आउटपुट नोटिसेबली डिफरेंट होती है, आर टू आर, डे टू डे, सेमेस्टर टू सेमेस्टर, टर्म टू टर्म। तो यहाँ पे हमें जरूरत आती है कि हम अपने सिस्टम को रिव्यू करें कि हमारे सिस्टम में क्या उसमें हर्डल्स हैं, सिस्टम में क्या वीकनेसेस हैं। तो ये हमें ISO 21001 बताएगा कि गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आउटपुट से रिलेटेड गैप्स को, प्रोसेस से रिलेटेड गैप्स को, जो अभी तक हमने देखा फर्स्ट पीपल और दूसरा प्रोसेस, ये 2 P's में क्या गैप्स है, 21001 स्टैंडर्ड क्या बता रहा है, हम कहाँ पे खड़े हैं, गैप कहाँ पे है, कैसे उसको ब्रिज करना है। When someone important is due to visit, जब स्कूल में किसी थर्ड पार्टी की विजिट आती है, कोई आपकी सर्टिफिकेशन, जिस सर्टिफिकेशन की विजिट आप करवाना चाह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर की विजिट है, जिस आजकल कोविड के दिनों में कोई विजिट चल रही है, कोई स्कूल के डायरेक्टर्स जो हैं, जो फ्रेंचाइज आपके ऑपरेशन हैं, स्कूल के जो आपके मेन बॉडी है स्कूल की, वो आपकी ऑफ एंड ऑन विजिट करती है। अगर आपको स्पेशल टाइम और स्पेशल एफर्ट्स के साथ थिंग्स को क्लीन अप करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स को आपको डेवलप करना पड़ता है, और आपको ओवर टाइम पे आप काम कर रहे हैं और आप उस विजिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि ये ISO 21001 की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो जिन स्कूल्स में इसकी सर्टिफिकेशन ली गई है तो उसको नॉट 1 आवर एक्स्ट्रा देयर वर्क, अगर आपका 9 to 2 या 8 to 2 आपकी टाइमिंग है, तो मैंने किसी स्कूल में ये नहीं देखा उसका, क्योंकि हम जहाँ पे
बाज़ का स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में स्टे किया होता है, तो वहाँ पे बड़ा मौका मिल जाता है हमें कि क्या एक्स्ट्रा कोई प्रेपरेशन हो रही है इसकी। तो वहाँ पे हमने देखा कि कोई एक्स्ट्रा प्रेपरेशन हो रही है, क्योंकि उनका रीसर्टिफिकेशन ऑडिट आता है, उनका सर्विलेंस ऑडिट नेक्स्ट ईयर में एक दफ़ा उन्होंने सर्टिफिकेशन ले ली, तो विद इन 2-3 ईयर्स उनका सिस्टम डेवलप हो जाता है। और बाज़ और बात तो आपका विद इन अ ईयर आपका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो है ना आप इसमें बिल्डअप कर लेते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद सेम वर्क रूल, मेथड, एसओपीज, मिशन, वीएन पॉलिसीज फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। बड़े अच्छे कंसल्टेंट को हमने हायर किया था, बड़े अच्छे टीम को हायर किया था, बड़े अच्छे प्रिंसिपल को हायर किया था, बड़े अच्छे स्कूल मैनेजर को हमने हायर किया था, लेकिन चीज़ें उसी तरह से हैं। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, कोई इसके रिजल्ट्स में, एकेडमिक रिजल्ट में, फाइनेंशियल रिजल्ट में, स्किल जो है पीपल की स्किल एनहेंसमेंट के रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आ रही। तो यहाँ भी इसका मतलब है आपका सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपका सिस्टम कहीं स्टक हो गया, आपका सिस्टम, आपका कल्चर वहीं पे खड़ा है, उसकी कैपेबिलिटी वही है जो आपकी कैपेबिलिटी, जो आपके टीम की कैपेबिलिटी थी। तो आपने कभी एफर्ट ही नहीं की कि मैं देखूं कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है। एक तो ये हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल कंसल्टेंट को एंगेज करना बड़ा एक्सपेंसिव है, वो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर रहा। तो अब ISO 21001 की सूरत में, इसकी शेप में ISO ने ये बेटर वे में हमें एक वेरी चीप या वेरी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड हमारे लिए बना दिया है कि उस स्टैंडर्ड की हेल्प लेके हम अपने थिंग्स को बेटर कर सकते हैं, एक्टिविटीज को बेटर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स की एरियाज में प्रोग्राम आउटकम, डिलीवरी, प्रोडक्टिविटी, हमने न्यूमरस टाइम्स इनको रिजॉल्व किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट क्वार्टर में हम देखते हैं दोबारा से वो प्रॉब्लम्स जो है ना अराइज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है जो इसमें हम देखेंगे करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, वो जो हमारे ये 3 प्रोसेसेस थे, करेक्टिव एक्शन का और रिस्क का, वो इफेक्टिव नहीं था। हमें पता ही नहीं कि उसको इफेक्टिव कैसे हमने बनाना। तो करेक्टिव एक्शन अगर आप इफेक्टिव बनाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम, सेम वही प्रॉब्लम आफ्टर अ ईयर, आफ्टर इवन 10 ईयर्स भी वो बिल्कुल आपके सिस्टम में, आपके इंस्टीट्यूट में दोबारा राइज नहीं हो सकती। तो ये 5th रीजन है कि ISO 21001 की रिक्वायरमेंट क्यों है। Programs are run to the best of school managers, officers ability. Deans की जो एबिलिटी होगी, स्कूल ऑफिसर की जो भी एबिलिटी होगी, हमारे तमाम प्रोग्राम्स आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सपर्टीज एंड एबिलिटीज ऑफ आवर टीम। अब टीम को भी पता नहीं है इंटरनेशनल टच, इंटरनेशनल एक्टिविटीज को इनकलकेट कैसे करना है, उनको कैसे इंटीग्रेट करना है मेरे अपने स्कूल की एक्टिविटीज के साथ, कैसे उसमें एडजस्टमेंट करनी है, बैलेंस एंड एडजस्टमेंट करनी है। कहीं से हमने कोई प्रैक्टिस ले ली, सीख ली, आके अपने स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और उसका हमने बैलेंस वे में जो हमने पढ़ा, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, पीपल, कल्चर, तो वो कल्चर को अपने को ना देखा कि जिस स्कूल की ये बेस्ट प्रैक्टिस को मैं बेंच मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसका कल्चर क्या था। तो हम देखते हैं कि पहले देखा कि कोई इनोवेशन, इंप्रूवमेंट हमने लॉन्च की, और पहले से भी स्कूल की परफॉर्मेंस, इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियरेट हो गई, वो बिल्कुल उसका बुरा हाल हो गया पहले से। तो ये स्टैंडर्ड ISO 21001 हमें हेल्प आउट करेगा कि आपने स्टेक होल्डर्स की नीड कैसे बैलेंस करना है। आपने स्कूल स्टेक होल्डर जो हैं, स्कूल के इन्वेस्टर जो हैं, उनकी नीड है, उनके पास एक स्पेसिफिक बजट है। अब उनका बजट अलाउ नहीं करता कि आप मेगा इन्वेस्टमेंट करें, आप एक बहुत ही हाई फाई ERP सिस्टम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कोई ऐप, एक्सपेंसिव ऐप आप अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस बनाएं। तो ये स्टैंडर्ड हमें ये रीजनिंग प्रोवाइड करता है कि हाउ टू बैलेंस द नीड्स, फाइनेंशियल, पीपल, प्रोसेस और डेवलपमेंट, ये चीज, इन नीड्स को बैलेंस कैसे करना है। तो ये हमें पता चलेगा ISO 21001 के स्टैंडर्ड की अवेयरनेस के बाद। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे लिए 21001 क्यों जरूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा स्कूल, हम क्रिएटिव हो सकते हैं, हम एक स्कूल मैनेजर ऐसा रख लेंगे जो बड़ा एक्सपेंसिव, कि मैंने स्कूल मैनेजर रखा है, इसने एक बहुत बड़ी चेन में या बहुत बड़े स्कूल में ऑलरेडी
ये वहाँ पे स्कूल मैनेजर था, मैं उसको ले आया। इस तरह सम पीरियड तक, सम मंथ्स तक तो आप उनको एंगेज कर सकते हैं। लेकिन वो फिर जिस इन्वायरमेंट में से आया, तो मैंने नहीं देखा कि वो उस तरह की इन्वायरमेंट में कोई अगर वो पैसे के लिए भी आया है तो वो विद इन अ ईयर या विद इन अ 6 मंथ वो दोबारा स्विच ओवर कर जाएगा कहीं और, तो आपका सिस्टम तो फिर धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो आई क्रिएटिविटी विदाउट यूएमएस डेली मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे हम आपको गाइड करेंगे, यूएमएस स्कूल मैनेजर्स को गाइड करेंगे, उसके बगैर क्रिएटिविटी इसी तरह से जिस तरह से आप पिक्चर 1 में देख रहे हैं कि आपने इम्प्रूवमेंट की। ये जो नीचे ग्रीन पिक्चर आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट आपने अपने स्कूल में रन किया, बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, उसमें बड़े हाई फाई कंसल्टेंट आपने हायर किए, उसमें आपने अपने कल्चर को ना देखा, अपनी टीम के स्किल को ना देखा, और फिर उसके बाद जब वो कंसल्टेंट छोड़ के गया, जब वो स्कूल मैनेजर जो एक्सपेंसिव सैलरी पे आप लेके आए, जब वो स्कूल के गया छोड़ के गया, तो उससे ज्यादा डिग्रेडेशन आपके सिस्टम में आ गई। फिर आपने सिस्टम को ज्यादा अपग्रेड किया, फिर उस पर आपने अपना एक्सपेंस लगाया, और फिर डिग्रेडेशन आ गई। तो इसी तरह से हमारे इंस्टीट्यूट कोई इम्प्रूवमेंट, कोई ब्रेक थ्रू या इनोवेशन नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिस को हमने स्टैंडर्डाइज नहीं किया, हमें पता ही नहीं स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे। अब ये देखें जो बिग इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो बिग इम्प्रूवमेंट्स हमने किए हैं, ब्रेक थ्रू हमने किए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम वहीं पे थे जहाँ पे कुछ 3 साल पहले, 5 साल पहले, जहाँ पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया। लेकिन अगर हम यूएमएस को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये डे बाय डे यूएमएस ISO 21001 को सिंपली हमने अडॉप्ट कर लिया, अपनी तमाम प्रैक्टिसेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली। तो आप इस डिफरेंस खुद आप नोटिस करें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वार्टर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 6 मंथ्स से आप उसका डिफरेंस देखेंगे। अब इसमें देखते हैं यूएमएस के प्रिंसिपल जो है जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड बिल्डअप हुआ है। सबसे पहला रीजन लीडरशिप, लीडरशिप का विजन क्या है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में भी लाइक है, स्टैंडर्ड यही है कि आपकी लीडरशिप का फ्यूचर विजन फॉर फ्यूचर क्या है, पॉलिसीज किस तरह से वो डेवलप करनी है, उनका माइंडसेट फॉर क्वालिटी। आप तो वो क्वालिटी कर रहे हैं, लेकिन किसी क्वालिटी की मीटिंग में अपने आप को खुद से उन्होंने एंगेज किया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। फिर फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हमारे सारे इंस्टीट्यूट में गट फीलिंग के ऊपर होते हैं, जो मेरा दिल चाह रहा है, जो मेरी मर्जी है, क्योंकि स्कूल मेरा है, मैं क्योंकि स्कूल मैनेजर हूँ, मुझे स्कूल ने रखा है, तो इसमें डिसीजन मेरा चलेगा। कोई फैक्ट्स एंड फिगर की बेसिस पे डिसीजन हो रहा, कोई डेटा की बेसिस पे डिसीजन हम करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड हमें गाइड करेगा किस किस्म का डेटा कलेक्ट करना है, किस डेटा का एनालिसिस कैसे करना है, डेटा कैसे स्पीक आउट करेगा हमारे फैकल्टी के साथ, उसको विजिबल कैसे बनाना है। तो फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, डेली बेसिस के ऊपर इम्प्रूवमेंट, और फिर इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की क्या क्या है, स्कूल के जो कम्युनिटीज हैं, स्कूल उनको कैसे फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोसेस अप्रोच क्या है, स्कूल किस अप्रोच पे काम कर रहा है। ये प्रोसेस अप्रोच वही PDCA साइकिल, प्लान डू चेक, क्या जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ उसमें उसकी मैंने पहले प्लानिंग की थी। जैपनीज कहती हैं कि हम अपना 60% टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन द प्लानिंग। क्या मैंने कभी देखा है कि प्लान कोई चीज की हो और इसमें वाकई क्रेडिट जाता है हमारी कौम को कि हम बड़े अच्छे प्लानर, बड़े अच्छा प्लान कर लेते हैं, लेकिन आगे उसकी एग्जीक्यूशन में हम फेल हो जाते हैं, या तो बिल्कुल एग्जीक्यूशन नहीं करते, या अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो थर्ड इसकी स्टेज है चेक। तो फिर प्लान में जो प्लान हमने किया था, जो टारगेट सेट किए थे, क्या उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन हुई, उसकी चेकिंग नहीं है। अगर चेकिंग है तो उसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। और फिर लास्ट PDCA जो है एक्ट कि उस पे जो गैप था, उस गैप पे एक्शन लिया गया, या मेरी इसमें भी वो कंपल्शन थी बीइंग स्कूल मैनेजर, जो उसमें फलां फैकल्टी में ये गैप्स थे। अब वो फलां फैकल्टी वाला मेरा दोस्त है, उसके ऊपर तो मैं एक्शन नहीं ले सकता, तो मैंने सिस्टम का ही वहीं पे गला दबा दिया, सिस्टम को ही खत्म कर दिया कि जो मैं इंप्रूवमेंट करने जा रहा था। प्रोसेस अप्रोच मैंने कहा था कि PDCA साइकिल इसमें मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो अब अगर आपने ISO 21001 की सर्टिफिकेशन ले ली है, तो ये काम आपके ऑटोमेटिकली होते हैं, क्योंकि आपको एक एनुअल बेसिस के ऊपर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की
रिपोर्ट आपको मिलेगी कि गैप कहाँ कहाँ पे, उन गैप को, और QSI और मल्टीप्लाइड को ये एज है कि वो गैप ब्रिज करने में हम आपके साथ करेंगे, हम आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे इन गैप को फिलअप करना है। लर्नर की एंगेजमेंट, लर्नर को एजुकेशनल प्रोसेस में कैसे एंगेज करना है, उनकी फीडबैक क्या, वो फैकल्टी के बारे में क्या कहते हैं, वो स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में क्या कहती हैं, उनको क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। हमने कभी लर्नर की नीड, उनसे फी वगैरह तो हम ले रहे होते हैं उनके साथ, बिल्कुल हमने ये कभी नोट नहीं किया कि जिनके लिए हमने बनाया हुआ है, क्या उनसे उनका कोई सर्वे हमने किया कि आपको, क्या हमने अपनी क्लास में पूछा कि स्कूल में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्या क्वालिटी है, आपको किस तरह, आप किस तरह का फील, सिंपली ये ड्रिंकिंग वाटर जो है, क्लीनिनेस जो स्कूल की है, इसमें अब आप उनको एंगेज तो करके देखिए कि स्कूल का क्लासरूम को वो खुद बच्चे जो हैं वो उसमें उनके ग्रुप्स आप बना सकते हैं, जिस तरह पहले किसी दौर में हुआ करते थे स्कूल में कि क्लीनिनेस के ग्रुप बनते थे। तो उनको एंगेज, छोटी छोटी एक्टिविटीज में जब आप एंगेज करेंगे तो उनमें लीडरशिप स्किल उनमें डेवलप होंगी। लर्निंग सेंटर्स, लर्निंग, क्या हमारा फोकस उसके ऊपर है कि क्या हमने लर्निंग इम्पार्ट की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या स्किल हमारे फैकल्टी में आई है, और क्या जो बुक के चैप्टर के पहले पेज पे लिखा होता है लर्निंग आउटकम, क्या ये चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे स्टूडेंट, इस पे भी कभी कोई एफर्ट किया कि हमारे ये आगे एथिक्स है, क्या क्या वो एथिक्स हमने बिल्डअप किए। एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी, जो एक किसी ने सवाल किया था कि मैं हाइब्रिड एजुकेशन, तो ये स्टैंडर्ड, ये वो प्रिंसिपल है जिसकी पहले किसी को समझ नहीं आ रही थी, एक्सेसिबिलिटी, कि एक्सेसिबल टू ऑल, कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, कि अगर कोई स्कूल में आ नहीं सकता क्या उसके लिए एक्सेसिबल है, जो स्कूल में है उनके लिए एक्सेसिबल है, और बैलेंस क्या है, अगर कोई आपके स्कूल में फिजिकली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, गैप कहाँ पे आ रहा है, रिजल्ट किसका बेहतर है, क्यों, अगर ऑनलाइन वाले कोई उनके ग्रेड अच्छे नहीं है तो क्यों अच्छे नहीं है, टीचर भी वही थे, फैकल्टी मेंबर भी वही थे, तो गैप कहाँ, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी में क्या क्या गैप है। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर UMS स्टैंडर्ड जो है बिल्ड किया गया, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इस स्टैंडर्ड के ऊपर बिल्ड की गई है। इसके बाद जी आ जाता है टूल्स UMS के, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसमें जो हमारा थारो कोर्स होता है 2 या 3 डेज का, उसमें ये हम करते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल एंड टेक्निक्स जो हैं वो हमने इम्पार्ट करते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो उसको जो भी ये हमने ये 3-4 स्लाइड्स डिस्कस की। Sir, Assalamualaikum. वालेकुम। Sir, in the last slide, there was point number 7, which was data security. Can you explain this point, data security? जी सॉरी ये जी सॉरी ये स्किप हो गया जी। जी थैंक यू वेरी मच जी, आपने आइडेंटिफाई किया डेटा सिक्योरिटी, कि आपका डेटा, स्कूल का जो डेटा है, इसमें IS 21001 में क्लासेस हैं कि स्कूल का स्पेसिफिक डेटा, जिस हर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, किस तरह से उसकी सिक्योरिटी को आपने इन्हेंस किया हुआ है, किस तरह से उसकी सिक्योरिटी को आपने इंश्योर किया हुआ है, उसको कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किस किस के राइट्स हैं, पेरेंट्स के साथ रिपोर्ट किस तरह से शेयर करनी, कौन सी रिपोर्ट शेयर करनी है, फैकल्टी मेंबर के साथ किस किस किस्म की रिपोर्ट शेयर करनी है, अगर किसी दूसरे फैकल्टी मेंबर की कोई रिपोर्ट, कोई अप्रिसिएशन की रिपोर्ट से शेयर करनी है तो उसके कंटेंट्स कौन कौन से शेयर करने हैं। तो बेसिकली ओवरऑल ये डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि इस पे ISO का एक 27,001 कंप्लीट स्टैंडर्ड भी है जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन 21,001 में इतना ही है जितना एक इंस्टीट्यूट को रिक्वायर्ड है कि आपने फाइनेंशियल डेटा, उसको कौन एक्सेस कर सकता है, लॉगिन क्या फैकल्टी मेंबर्स के बने हुए हैं, स्टाफ के लॉगिन बने हुए हैं, फाइनेंशियल डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, प्रोग्राम्स डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है,
बॉडी ऑफ नॉलेज के डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो ओवरऑल हर किस्म का डेटा जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑनर कौन है, डेटा को कौन क्रिएट, किसने ये रिपोर्ट क्रिएट किया है, किसने इसके ऊपर रिपोर्ट को रन किया है, और इस रिपोर्ट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर पेरेंट्स को हमने सेंड करनी है तो उसके कौन सा पोर्शन ऐसा है जो हमारे लिए, हमारे स्कूल के सिक्योरिटी के लिए, या पेरेंट्स के या दूसरे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है हमारे लिए। तो दूसरे बच्चों का डेटा शेयर करना है, जैसा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए आजकल, उसके थ्रू तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कौन सा डेटा शेयर करना है, किस किस्म का वो डेटा शेयर करना है, और बच्चे जो शेयर करते हैं क्या उनको हमने ये राइट देना है या वो कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये डेटा सिक्योरिटी आपकी है कि आपने स्कूल्स की रिपोर्ट, आपने क्लास की रिपोर्ट्स, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो किसके साथ कब शेयर करनी। जी और कुछ सवाल आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आपने 3 P's की बात की, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड पीपल। जी। तो पीपल्स में टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया गया है दैट विल बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर डेज और इन फ्यूचर आवर्स। जी बिल्कुल, ये असल में इसके ऊपर गाइडलाइन इन्होंने कंप्लीट स्टैंडर्ड में अवेलेबल हैं कि जब आपके स्किल मैट्रिक्स बनती है तो अब आपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की इसमें क्लासेस हैं कि क्या आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था, आपका स्कूल कौन से इश्यूज फील का जो है ना वो इश्यूज और चैलेंजेस जो हैं आपके स्कूल को हैं वो फेस कर रहे हैं आपके स्कूल में, आपके अब फैकल्टी जो है इसकी एग्जिस्टिंग स्किल क्या है, और फिर ये स्टैंडर्ड आपको गाइड करता है कि ये एडिशनल इसमें आपके फैकल्टी में क्या ये स्किल है, ये स्किल है। तो ये जब आप स्किल मैट्रिक्स एग्जिस्टिंग बनाएंगे और जब उसको कंपेयर करेंगे गाइडलाइन के साथ तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा फैकल्टी मेंबर कहाँ पे खड़े, और फिर ये इसमें उसमें ग्रेजुअल चेंजेस जो हैं वो हमने ही करनी होती हैं सारी स्किल मैट्रिक्स में, कि अब आपका एक फैकल्टी मेंबर है वो आप उसको 4 इसके नॉर्मली लेवल बनाते हैं, एक लेवल फर्स्ट है, फिर इंटरमीडिएट लेवल है, फिर मीडियम एडवांस लेवल है, और एक एक्सपर्ट या एक्सपर्ट एडवांस लेवल इसका होता है। तो अब आपके पहली है कि 25% स्किल है कि विद गाइडेंस, ये विद क्लोज गाइडेंस ये ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई नए फैकल्टी मेंबर हैं आप उनको किसी सीनियर फैकल्टी मेंबर के साथ, जिस यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट जो उसने 1 साल पहले जो है, और मे भी स्कूल के लिए अफोर्ड ना कर सकती हूँ स्कूल इस तरह का, तो वो एज ए 1 ईयर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने काम करना होता है। तो स्कूल्स में भी क्या उसकी आपने ओरिएंटेशन करवाई उस टीचर की, उसको एक इंडिपेंडेंटली उसने जब क्लास रन करनी है उससे पहले आपने उसका एक्सपोजर क्या करवाया, आपने उसकी कोई ओरिएंटेशन अपने स्कूल में करवाई कि आपके स्कूल में बेशक उसका वो कहते हैं जी मैंने फलां जगह पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये वो उसकी स्किल को आपने कैसे असेस किया इन द लाइट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इसी तरह मैंने देखा है कि एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट को मैं विजिट कर रहा था, तो उसमें एक टीचर थे उनका ऑलरेडी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस था, एक उनके स्कूल मैनेजर थे वो भी एक बड़े अच्छी जगह से एक्सपीरियंस लेके आए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा जी हमें 1 ईयर हो गया है लेकिन अभी तक ये प्रोबेशन पे। तो मैंने उनको समझा शायद ये ड्यू टू पे या ड्यू टू ये कहते हैं सैलरी की वजह से इसको रखा हुआ है। तो मैंने देखा कि सैलरी वो उनको पूरी जो उनसे कमिट किया था इंटरव्यू में वो सैलरी वही दे रहे थे। तो मैंने कहा जी फिर इसमें आप जब पे भी इसको एज पर नीड्स ऑफ दिस पर्सन पे कर रहे हैं तो अब आप इसको स्टेटस क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना ये डेवलप किया हुआ है, उन्होंने उस वक्त ISO 9001 की सर्टिफिकेशन ली थी उसको ने। तो उन्होंने कहा जी जब हमने ये सिस्टम डेवलप किया है तो उसमें जो हमारी अपनी स्किल मैट्रिक्स है इस पे अभी ये गो कि इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी ये हमारे उस लेवल से नीचे है। अब हम इसको फर्दर हमारी 6 हमारी असेसमेंट होनी है, 4 इनकी हो गई है, 2 असेसमेंट रिमेनिंग है। उसके बाद वी होप सो
कि ये इसको नेक्स्ट लेवल पे हम दे देंगे। तो वो लेवल आपने खुद से अपने स्कूल के बनाने हैं, जैसे आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, तो इसी तरह स्किल का भी आपका, कंप्यूटेंस का भी आपका सिस्टम होगा, जो आपने वो लेवल खुद से देने होंगे कि मेरा अब ये फैकल्टी मेंबर, मेरा अब ये टीचर, मेरा अब ये स्कूल मैनेजर किस लेवल पे है। और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड आपको गाइड करेगा कि अब आप अपना, जिस तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन करती हैं कि वो कस्टमाइज वे में एक जूनियर स्टाफ मेंबर, और नेचुरल प्रोसेस भी यही है कि आप इनिशियल लेवल से लेके चलें। तो वो स्कूल मैनेजर, असिस्टेंट स्कूल मैनेजर जो हैं, उसको वेरी बिगिनिंग से वो हायर करते हैं, उसको खुद इंस्ट्रक्टेड कोचिंग उसकी करती हैं, और फिर उसके बाद वो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ सक्सेसफुल स्कूल मैनेजर। तो उसके लिए भी ये स्टैंडर्ड गाइड करता है कि आपके कैरियर पाथ्स कैसे होंगे, किस तरह से कैरियर पाथ आपने डेवलप करना है। ये कोई और आपका क्वेश्चन हो? जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टूल्स फॉर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम अपने कंप्लीट कोर्स में डिस्कस करते हैं। सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के सिस्टम विद इन अ सिस्टम, एसओपीज, वर्क प्रोसीजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं खालिद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। मेरा स्कूल है जक्का पब्लिक स्कूल। जी जी खालिद साहब। तो जिस तरह सर अभी आपने ये बताया कि हम प्रोसीजर है और हम 1 ईयर के लिए आपने एक स्कूल की एग्जांपल दी, तो इसी तरह मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करूँ जिसमें हमने अपना इन हाउस एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किया। एक ट्रेनिंग हेड है जो आते ही एक टीचर को वो ले लेते हैं और उसमें हम ट्रेनिंग कराते हैं। अब उसमें एक चैलेंज आ रहा है कि अगर हम उसमें देखें कि लास्ट हमने जो 20 टीचर्स हैं या 10 टीचर्स का अगर डाटा एनालाइज करें तो पता ये चलता है कि उनमें से 25% शायद 6 मंथ्स में या 8 मंथ्स में चले गए, और अगर एवरेज देखें जो एक प्राइवेट स्कूल में अगर बाकी लोग भी हों तो हमारे पास मैक्सिमम एवरेज जो एक टीचर की लाइफ है वो 2 ईयर से ज्यादा नहीं है। तो थोड़े होते हैं प्राइवेट सेक्टर में और उनकी शादियां हो जाती हैं। और इसी ऐसी सिचुएशन में जब हम बहुत एक प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग लेते हैं उनकी, इसका क्या एक कोई आपके माइंड में कोई सोल्यूशन है कि ट्रेनिंग सिस्टम, अब एक टीचर को आप ट्रेन करते हैं 6 माह, दो जब उसका डिलीवर करने का टाइम आता है तो बल्कि वो कहीं और अप्रोच करता है या वो समझता है कि मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ। इस ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी ऐसी सिचुएशन आपने बताई है जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस भी फेस करती हैं, और बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये जो इशू है ये बड़े बड़े अदारे भी इसको फेस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी हमने डेवलप किया था, हमने उसकी कॉम्पिटेंस को इन्हांस किया था, और कुछ अरसे के बाद वो छोड़ के चले गए। इसमें कुछ चीज़ें तो समझ आती हैं कि जैसा आपने बताया कि उनकी शादियां हो जाती हैं, वो चले जाती हैं, कि मे बी उन्होंने आउट सिटी जाना हो, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे है, कि कल्चर आपका स्टेट करता है। अब आपने ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग भी आपने करनी है, और इसमें आपको, मैं अगेन आप कहेंगे बार बार इसी की बात कर रहे हैं, 21001 का 4.1 क्लास जो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट ही एनवायरमेंटल स्कैनिंग से होती है कि आपके जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपने क्यों इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों आपके वो लोग, आपने उनको ट्रेनिंग भी दी है, अच्छी पे भी आप दे रही हैं, आपसे वो ट्रेनिंग लेके किसी और जगह पे वो जाके उसको कैश भी करवा रहे हैं, आपके पास वो क्यों स्टे नहीं कर रहे? तो क्या उनका एग्जिट इंटरव्यू प्रॉपर हो रहा है? तो अगर वो आपका स्कूल है तो आप एक सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस कर लें कि उसका एग्जिट इंटरव्यू स्टार्ट कर लें। चाहे कोई लड़की की शादी हो रही है, उससे इंडिपेंडेंटली, विदाउट प्रेशर, आप उसको एक एग्जिट इंटरव्यू का फॉर्म दे दें कि जी आपके हमारे स्कूल के बारे में ये 3 P's के प्रोसेस, इसकी पीपल, टीम और इसका एजुकेशनल सिस्टम कैसा है। एक एक लाइन, दो दो लाइनें लिख दें, तो आप इसमें मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि वीकनेस कहाँ पे है। तो ये सिस्टम की ही कहीं पे मुझे वीकनेस नजर आ रही है कि इसमें। बाकी ये जो इशू है छोड़ के जाने वाला, ये हर ऑर्गेनाइजेशन फील कर रही है, हर जगह पे मैंने भी ये किया है
कि मैंने अपने एक रिसोर्स को बड़ा अच्छा ट्रेन किया, पूरे के पूरे जितने भी स्टैंडर्ड में मैं काम कर रहा हूँ उसमें उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाई, उसके बाद वो छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चला गया। अब इसमें ऐसी सिचुएशन है कि उसको मैं रोक भी नहीं सकता कि अब पाकिस्तान में जो उसको सैलरी मिली है वो पाकिस्तान में कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं दे सकती थी। तो उसके लिए मैंने दुआई की है कि उसने भी बड़ा अच्छा, उसने मुझे बड़े अच्छे उसके ख्यालात थे मेरे बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि आपने बड़ा अच्छा इसमें मेरी ग्रोथ और लर्निंग मेरी करवाई है। लेकिन हम समझते हैं एट द टाइम कि मेरा ये नुकसान हो गया, होता है नुकसान हो, लेकिन क्या सिस्टम मेरा ऐसा है कि मुझे ये फील ही ना हो कि ये मेरा लॉस हुआ है। तो ये एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है। दूसरी तरफ उसमें आप देखें कि गैप कहाँ पे आ रहा है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कल्चरल स्कैनिंग करें कि कहीं आपके स्कूल में कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि जिसकी वजह से 6 मंथ या 1 ईयर के बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप उनको इतना अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आपने उनको दिया, स्किल को भी इनहेंस करवाया, तो फिर वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप 4-5 एग्जिट इंटरव्यू कर लेंगे तो पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे गैप है। लेकिन शर्त यह है कि विदाउट एनी प्रेशर उनसे जब आप एग्जिट इंटरव्यू कर रही है ना, तो फिर ये ना हो कि आपका कोई स्कूल मैनेजर या कोई सीनियर फैकल्टी मेंबर उसको कह रहा हो ये नहीं लिखना, ये नहीं, ये लिखी। तो एग्जिट इंटरव्यू का पर्पज ही बिल्कुल फोत हो जाता है जब आपने उसको अंडर द सुपरविजन कर लिया। तो एग्जिट इंटरव्यू स्टार्ट कर लिया आप, वहां से मैंने देखा है बड़े आपकी कल्चरल प्रॉब्लम, प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाती है। जी थैंक यू सर, आपने बड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया। थैंक यू जी। और अगर किसी का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपकी आवाज आ रही है जी। जी ऐसे मैं पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या टूल है जिसकी वजह से हम अपनी फैकल्टी की कैपेबिलिटी को, उनकी स्किल्स को एनहांस करें विद ऑफ टाइम और डे बाय डे। क्या कोई ऐसा टूल है जिस पे हम मतलब उनको डे बाय डे ऑब्जर्व कर सकें कि क्या इनकी जो स्किल्स है वो एनहांस हो रही हैं या वहीं पे स्टक हैं जहाँ पे ये हायर हुए थे? जी ये टूल बिल्कुल जिसका मैंने जिक्र किया है अभी, और इसमें ये सेट ऑफ सिस्टम टूल एंड टेक्निक्स में रिव्यू एंड वन जो गाइड करता है हमें, तो उसका वन ऑफ द सब क्लास है स्किल मैट्रिक्स के ऊपर कि कंपिटेंस, और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कूल की कंपिटेंस, स्कूल का सिस्टम, स्टाफ की कंपिटेंस, टीचर की कंपिटेंस, वो कितनी इनहेंस हुई पर एनम, पर क्वार्टर आपने उनके ऊपर क्या इन्वेस्ट किया है। और आजकल तो बड़े फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है कि यूट्यूब पे उनकी कोई वीडियो की से रिलेटेड आपने कोई अच्छी वीडियो का, कई स्कूल ने रखा हुआ है उसका बैंक ऑफ वीडियोज, कि वो वीडियोस को देंगे। तो बेसिकली ये रिव्यू एंड री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं कि अगर आपका स्किल मैट्रिक्स आपने एक दफ़ा बना ली है और आपने उसका रखा हुआ है, जिनके साथ हम ये काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथली बेसिस के ऊपर हर टर्म के बाद उसको आप रिव्यू करें, और वो थारो रिव्यू हो और 360 डिग्री उसकी फीडबैक कलेक्ट करें कि आप टीचर से भी उसकी स्टूडेंट से भी उसकी फीडबैक लें, उसके बाकी पीयर्स या कोलीग से भी उसकी फीडबैक लें, और फिर आप बीइंग सीनियर भी उसकी फीडबैक लें, उसके सबॉर्डिनेट से भी उसकी फीडबैक लें कि इसमें क्या चेंज आई है ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। तो स्किल मैट्रिक्स वो चीज़ है। लेकिन इसमें अगर आप कहें कि आफ्टर 6 मंथ इसमें कोई चेंज आ जाएगी, वो मान्यूट या कंटिन्यूअल चेंज तो उसमें आ जाएगी, कुछ स्मॉल चेंज तो आ जाएगी। लेकिन जब आप इसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हम इसमें बड़ा फास्टली चलते हैं कि हम ओवर द नाइट रिजल्ट देखना चाह रहे होते हैं कि मैंने आज ही सर्टिफिकेशन ली
और विद इन 2 मंथ्स जो है ना मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें शर्त यह है कि आपने 2-3 रिव्यूज उसके कंप्लीट कर लिए, कि 6 मंथ के बाद, फिर 1 ईयर के बाद, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद, तो उसके बाद आपको जो है ये इस मेच्योरिटी। और ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का भी एक जो उनका अपना एक स्टडी है कि स्टैंडर्ड्स की मेच्योरिटी में 3 इयर्स लगती है, कि स्टैंडर्ड्स को 3 इयर्स में आप उसके ये कह सकते हैं कि मेरे अब सिस्टम तमाम इसकी क्लासेस को अडॉप्ट कर लिया, तो मेच्योरिटी तो उसके बाद आ जाएगी। तो 3 इयर्स का एक कंप्लीट साइकिल, इसीलिए ये सर्टिफिकेशन भी 3 इयर्स के लिए होती है, उसके बाद रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होता है। तो 3 इयर्स में आप उसमें फील करते हैं कि चेंज आ गई है मेरे सिस्टम में। उसके नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर्स के बाद, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्वालिटी कॉन्शियस इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने ऑलरेडी जो है ISO 9001 की सर्टिफिकेशन ली हुई है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है और उनके सिस्टम डेवलप हुए हैं। और अब तो 21001 स्टैंडर्ड क्योंकि है ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूट की, टीचर्स की, ये 3 Ps जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस। जी जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड्स या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। स्कूल के लिए हर लेवल और फंक्शन पे क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। 5S ये एक जापानीज सिस्टम है जिसमें जो 5 उसमें वर्ड्स हैं जो S से स्टार्ट हो रही हैं। ये हाउस कीपिंग का बेसिकली सिस्टम है, हाउस कीपिंग का। और इसमें QSI ने बड़ा इसमें एक 5S चेकलिस्ट डेवलप की हुई है। और ये एक स्कूल के साथ में काम कर रहा था, KPK में, बड़ा रिमोट एरिया में वो स्कूल था। उसने 5S के ऊपर मैं उधर नॉर्दर्न एरियाज में गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप सर इसमें ट्रेनिंग देते हैं, तो मेरे स्कूल में कोई इम्प्रूवमेंट कर दें, मुझे कुछ बता दें। तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने 5S के ऊपर उसकी एक सिंपल सी असेसमेंट की। उसके बाद मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ये 5S की चेकलिस्ट थी, ये मैंने उसको हैंड ओवर की। उसके बाद उसने आफ्टर अ ईयर मेरे ख्याल में, तो मुझे उनकी कॉल आई। उसने कहा जी कि हमारे एक मेरी जो स्कूल की जो चेन है, छोटी सी OKPK की एक चेन थी, उसने मुझे बेस्ट स्कूल ऑफ द चेन के जो 100 से ज्यादा इसकी चेन स्कूल है। और मैं हैरान रह गया कि रूरल एरिया में बड़ा छोटा सा स्कूल। तो कहने लगा जी सर मुझे 5S ने बड़ी मेरी हेल्प आउट किया है कि मेरे रिकॉर्ड की मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, मेरे जितने भी जो फैसिलिटीज हैं, क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, लॉसेस मेरे हो रहे थे, कोई चीज़ का पता नहीं चल रहा था, उसमें डिटीरिएशन आ रही थी, चीज़ें टूट रही थी और चीज़ों की कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। तो 5S हाउस कीपिंग का मैंने जो आपके ये 3 पेजेस आप मुझे दे के गए थे, तो मैंने किया क्या है कि इसका मैं खुद से हर वीक में मैं ये इसकी असेसमेंट खुद बीइंग स्कूल प्रिंसिपल और ऑनर मैं इसकी असेसमेंट करता हूँ। तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है। 5S का सिस्टम भी इसकी क्लासेस में इन बिल्ड हमने किया हुआ है। एबनॉर्मेलिटी हैंडलिंग सिस्टम, एबनॉर्मेलिटीज किस तरह से हैंडल की जा रही है, कंप्लेंट्स किस तरह से हैंडल की जा रही है, उनका क्या सिस्टम है, रिव्यू एंड री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, जिसका मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंट्रोल पॉइंट्स, स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस, उनको रिव्यू करने का क्या मैकेनिज्म। क्या कभी हमने अपना सिलेबस रिव्यू किया, कोई बुक जो हमने अडॉप्ट की हुई है उस बुक के बारे में पेरेंट्स का क्या ख्याल है, क्या कभी कोई मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग जो थी, क्या कोर सिलेबस से रिलेटेड थी वो, कि आप इस बुक के बारे में फील क्या करती हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो बुक का मुझे पता है, स्टूडेंट को क्या पता है अब, और एलुमनाई को क्या पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो मेरी एक आदत है कि मैं जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं एनुअल या 2 इयर्स के बाद गेट टुगेदर करता हूँ। तो वहां से मुझे पता चलता है कि कोर्स आउटलाइन जो मैंने सेट की हुई है, जो बुक मैंने अडॉप्ट की हुई है, उसमें क्या वीकनेसेस है, उसमें क्या उसकी स्ट्रेंथ है, किस तरह से मेरे स्टूडेंट को हेल्प आउट किया। तो ये पेरेंट्स आपको बता सकते हैं जिनके वो बच्चे हैं कि इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है, इसमें क्या चीज, इस जो सिलेबस है
वो आउट ऑफ द वे है, क्या चीज एक्स्ट्रा है। तो वो स्टार्ट में ऐसे ही करेंगे कि कोई उसके बारे में बातें कर देंगे कि ये, लेकिन उसमें अगर 10% को आपने पूछ लिया तो मैं शर्त ऐसी सजेशंस आपको, कंक्रीट सजेशन मिलेंगी जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिनके ऊपर कोई आप एक्शन ले सकते हैं। फिर इसके बाद गैम्बा वाक्य है, ये भी एक जापानीज टर्म है, और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ये कोर्स जो है ये सक्सेसफुल क्यों है, कि जैपनीज प्रैक्टिसेस को हमने इंडक्ट किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड आपने पूछा है फॉर 5S, ये 5S को आप सर्च करेंगी तो मैंने बताया कि ये 5 वर्ड्स हैं जापानीज, जो कि जापानीज लैंग्वेज की हैं, जो एस से स्टार्ट हो रही है, से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस तरह सीवी, सेटॉन, और उनको आगे हमने ट्रांसलेट इंग्लिश में भी किया हुआ है, सेट इन ऑर्डर, सॉर्ट आउट, सस्टेन, शाइन। तो ये वो 5 वर्ड है। तो ये 5S हाउस कीपिंग का बेसिकली सिस्टम है कि आपने मैनेजमेंट ऑफ योर रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ योर फैसिलिटी, तो इसके बारे में हमें गाइड करता है कि हमने अपनी बिल्डिंग की मैनेजमेंट, मेंटेनेंस की तरह। और ये ऐसा है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको जो है ना एक्सपेंडिचर लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने उसको मेंटेन करके क्लीनिनेस कहाँ पे है। तो इसके हार्डली 34 इसमें क्लासेस हैं, 34 बल्कि पॉइंट्स हैं जो आपने उसको टिक मार्क करना होता है, और 1 to 5 के स्केल के ऊपर आपने उसकी रेटिंग देनी होती है, और फिर उसमें उस रेटिंग के बेसिस के ऊपर आप हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई प्राइज देती हैं, या जिस तरह भी आपके स्कूल का कल्चर है। तो ये स्टैंडर्ड जो है, ये 5S कोई एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये हाउस कीपिंग का सिस्टम है, जो वेरियस स्टैंडर्ड्स में इसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि हाउस कीपिंग को आपने फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपने कैसा दिया हुआ है, किस तरह से उसको मैनेज करें। गैम्बा वाक है कि वाक विद अ पर्पस, कि विद अ पर्पस आप कैसे बीइंग स्कूल प्रिंसिपल जो है, आप क्या अपनी पूरी फैसिलिटी को, क्या आप डेली बेसिस पे, आप ठीक है आपकी मीटिंग्स हैं, आपने बड़ा काम करना है, बड़े बिजी भी हैं, लेकिन एक बेस्ट स्कूल मैनेजर, एक बेस्ट प्रिंसिपल वो है जो अगर विद इन द रीच है आपके, तो वो 1 डे में 1 टाइम, या एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे, या सो मच सो आप कह सकते हैं कि ट्वाइस अ वीक वो पूरी फैसिलिटी जो है, पूरी जो बिल्डिंग है उसका वो राउंड करे, और वो विद सम पर्पस। तो इसको वो कहते हैं गैम्बा वाक। तो उस वाक में आपने देखना है कि आपका फर्ज का पर्पस ये है कि आपने 5S की चेकलिस्ट है आपके पास, या 5S में से 2-3 चीजें आपने आइडेंटिफाई की हुई हैं कि कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग किस तरह से मेंटेन है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है, गार्बेज कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सी जो सारे पाथ्स हैं जो वो सारे क्लियर हैं, क्या स्टेयर्स सारी क्लियर हैं, क्या स्टेयर्स में कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी हुई कि हमारा होता है कि एक पाथ में कोई चीज हमने रख दी है कोई, और हम तो कह रहे होते हैं कि जी यहाँ पे जगह काफी है, इसमें से लोग बाकी दूसरी साइड से गुजर सकते हैं, ये रास्ता है लोगों के लिए। तो वो चीज जो हमने कोई ड्रम वगैरह रख दिया है, या कोई बास्केट हमने रख दिया है, या कोई एयर कंडीशनर खराब हुआ है वो रख दिया है, या जनरेटर खराब हुआ है वो रख दिया है, तो वो बरसों से वहीं पड़ा रहता है, या महीनों से कम तो उसको लगी जाती है, वो एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। हमने देखा है कि इसी तरह की चीज़ों से एक्सीडेंट होते हैं कि कोई विजिटर या किसी को अगर पता नहीं है तो उसका वो एक्सीडेंट आ जाता है, या कहीं पे कोई खड्डा आ गया है, वो जिससे हमारी रोड्स के ऊपर आ जाता है कि वो कई कई महीने फिर वो खड्डा रोड के ऊपर चले जाता। तो 5S का सिस्टम हमें ये कहता है कि आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई, गैम्बा वाक हमें ये कहती है कि इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करें, और एज सुन एज पॉसिबल उनके ऊपर आप एक्शन, क्योंकि ये आपको एक बड़े लॉस से बचा देगी गैम्बा वाक। तो बीइंग स्कूल मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अवॉइड करें, और उसमें आप जितने भी आपका वर्किंग एरिया, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके हेड्स हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो उस वार्ड में, उनसे खैरियत, उनके फैमिली के मैटर भी आप डिस्कस करें, उनकी डिफिकल्टीज, उनके बारे में जो गुड एलिमेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं,
क्या चीज़ वो ऐसी है वो जिसको वो समझते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये गैम्बा वाक इसमें फैसिलिटेट करता है। ये गैम्बा वाक भी इसी का पार्ट है। कम्युनिकेशन पैटर्न, किससे कब किस वक्त कम्युनिकेशन करनी है, पेरेंट्स से कौन कम्युनिकेट करेगा, फीस से रिलेटेड कम्युनिकेशन, फॉरेन बॉडीज के साथ कम्युनिकेशन किसने करनी है। तो कम्युनिकेशन का पैटर्न आईएसओ की क्लासेस में ऑलरेडी ये गिवन है। गोल्डन स्टेप्स ऑफ डेली मैनेजमेंट जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 12 गोल्डन स्टेप्स ऑफ डेली मैनेजमेंट हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर ये स्टैंडर्ड्स में से ही हमने इसको एज ए कम्पिटेंसीज निकाल के हमने अलग से इस जो कंप्लीट कोर्स है उसमें हम इसमें फैसिलिटेट करनी है। फिर आर्म्स ऑफ डेली मैनेजमेंट, आपके ये आईएसओ 21001 ये डेली मैनेजमेंट का ही स्टैंडर्ड है कि डेली एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इसमें डेली मैनेजमेंट आ रहा है तो इसमें मे भी काफी लोग इसमें परेशान होकर डेली मैनेजमेंट किया है। तो ये आईएसओ 21001 आपका डेली मैनेजमेंट सिस्टम है। डेली मैनेजमेंट सिस्टम इसको जापानीज ऐसे डिफाइन करती है कि जरूरी नहीं हो कि वो एक्टिविटी डेली हो रही, जो भी एक रेगुलर एक्टिविटी है वो डेली मैनेजमेंट का पार्ट है। जो आर्ली बेसिस पे हो रही है, जो मंथली बेसिस पे हो के आपने कहा है कि 5th ऑफ एवरी मंथ ये एक्टिविटी होनी है, वो जो रूटीन की रेगुलर एक्टिविटी है वो इसमें डेली मैनेजमेंट में हमने इंक्लूड की हुई है। डेली मैनेजमेंट के आर्म्स क्या क्या है, और फिर डेली मैनेजमेंट की चेकलिस्ट के डेली मैनेजमेंट एक तो 5S की चेकलिस्ट है और इसकी आउटकम इस आईएसओ स्टैंडर्ड 21001 की ये फॉर स्कूल मैनेजर ये है कि डेली मैनेजमेंट चेकलिस्ट अगर कोई कंप्लीट कोर्स करती है तो वो खुद से कस्टमाइज चेकलिस्ट बना सकता है कि डेली मैनेजमेंट मैंने अपने डिपार्टमेंट की, अपने फैकल्टी की, अपने लैब की, अपने पूरे स्कूल की, या अपने जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स है उसकी मैंने चेकलिस्ट कैसे डेवलप करनी है, उसको उसका फॉलोअप कैसे करना है। ये कोई और फर्दर किसी का क्वेश्चन हो? जी जी, इसके बाद जी ISO 21000 ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वेयर शुड क्वालिटी इनहेंसमेंट डेज। क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल यूनिवर्सिटीज में तो बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश है, और यूनिवर्सिटीज में इसलिए ये सेल इस्टेब्लिश है कि इसमें HEC की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हर यूनिवर्सिटी जो है अपनी, आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर भी जाके किसी भी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप चलेंगे तो उसमें कंपल्शन ये है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाएंगे, नॉट ओनली ऑन वेबसाइट, कि वो फिजिकल उनका एक इंडिपेंडेंट सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होगा जो कि क्वालिटी से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं, क्वालिटी इनहेंसमेंट, एक्सीलेंस से रिलेटेड, उनको वो फैसिलिटेट करेगा, उनको वो डेवलप करेगा, प्रमोट करेगा इन द यूनिवर्सिटी, इन द इंस्टीट्यूट। और फिर HEC ने ये लिखा है कि उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, वो और वो कौन सी वो टीम है। तो ये कंपल्शन है कि हर एक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको आगे कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, ये क्यों इसी की वजह से ही हमारी यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस बढ़ी। हमारे पहले हम देखते थे कि वर्ल्ड की 500 या 1000 यूनिवर्सिटीज में हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। हमारी UET, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो लाहौर में बड़े टॉप रैंकिंग हमारी यूनिवर्सिटी है, वो दुनिया की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में उसका कोई स्टेटस नहीं था। अब ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स उसने आज हमारे पास और ये भी 2018 में हुआ कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो UET लाहौर, इसकी डिग्री वाशिंगटन अवार्ड के तहत अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जितनी किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री रिकॉग्नाइज है उसी तरह से। और हमारी 500 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हमारी जो हैं काफ़ी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज उसमें इंक्लूडेड है। और इसका अगर जो मैंने इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है HEC को, उसके बाद क्रेडिट जाता है QEC डिपार्टमेंट को, क्योंकि HEC ने कंपल्शन लगा दी, क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल बनी। अब अगर यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं तो वाई नॉट।
स्कूल्स की भी हमारी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ रही? जो स्टार्ट में जो 6 एलिमेंट्स कि वाई ISO 21001 इज नीडेड। अब कई ऑर्गेनाइजेशन, कई स्कूल होंगे जिन्होंने 9001 की सर्टिफिकेशन ली होगी या 9001 पे कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन एटलीस्ट की होगी, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाए, उसको मेंटेन नहीं रख पाए उस सर्टिफिकेशन को। आफ्टर सम इयर्स उन्होंने देखा कि इसको छोड़ने कोई फायदा नहीं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमने किसी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। हमने और टाइम बेसिस के ऊपर किसी फैकल्टी मेंबर को कह दिया कि QC के क्वालिटी के मैनेजर तुम हो, क्वालिटी के हेड तुम हो, क्योंकि ये काम इस तरह चलेगा। QC डायरेक्टर की जो पोस्ट यूनिवर्सिटीज में है, एटलीस्ट QC मैनेजर की पोस्ट हम स्कूल्स में रख सकते हैं। और जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में अपनी प्लेस बनाई है ओनली ड्यू टू दीज QC, तो हमारे स्कूल भी ये कर सकते हैं। इसमें शर्त सिर्फ ये है कि आपने QC डिपार्टमेंट अपने स्कूल में एस्टेब्लिश करना। तो स्टार्ट भी आप कर सकती हैं कि आप देखें कि वर्कलोड हमारे स्कूल में किस किस जगह पे कैसा कैसा है। आप टीचिंग वर्कलोड किसी टीचर के ऊपर खत्म करके, जो आप समझते हैं उसमें मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं, उसका टीचिंग लोड जो है ग्रेजुअली कम करते जाएं, और जितना जितना वो क्वालिटी से रिलेटेड टास्क में एंगेज हो जाता है उसका वर्कलोड क्वालिटी से रिलेटेड इन्हेंस करते जाएं और टीचिंग लोड उसका कम करते जाएं। तो ग्रेजुअली आप इस तरह से QC, अगर स्टार्ट में इंडिपेंडेंट किसी को हायर करना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो मेरी रिकमेंडेशन, इसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होगी कि QC डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने का आज से ही आप तैयार कर लें, उसका गोल कर लें कि अब हम ऑन द एज ऑफ न्यू ईयर अब हैं कि जब हमारा एजुकेशनल ईयर स्टार्ट हो रहा है, अब हम ये एक तैयार कर लें कि मैंने इस साल सेशन ये टर्म 1 में, ये मई जून में अपना QC डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर, उसके क्या क्या कंडीशन, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस तरह से होंगे, तो इसके ऊपर आप मल्टीप्लाइड से डिस्कशन कर सकती हैं, उनसे हेल्प ले सकती हैं, उनके वो कैसे, क्या उनके रोल्स होंगे, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किस तरह से वो लाइन अप करेंगे। अब ये देखें, वो QC डिपार्टमेंट जो आपके स्कूल का होगा वो कहाँ पे किसको रिपोर्टेबल होगा। तो ये एक स्लाइड आप, अगर हम हैं टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो स्कूल मैनेजर, जिस तरह यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार होती हैं तो स्कूल्स में वो स्कूल मैनेजर होती हैं। तो अगर आप ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चाह रहे होते हैं तो स्कूल मैनेजर के पास, जो ये कोर्स भी आप कर रही हैं, तो स्कूल मैनेजर्स के पास मैनी अदर थिंग्स आर देयर टू बी डेल्ट बाय स्कूल मैनेजर्स। तो वो ऑलरेडी वो अपने की और क्रूशियल रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रार, स्कूल मैनेजर। तो वहाँ पे तो क्वालिटी को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिसने ये गलती की है कि रजिस्ट्रार को जो, अगर आपके स्कूल अभी छोटा है, अभी कोई न्यूली स्कूल है, तो वहाँ पे तो आप कर सकती हैं, लेकिन एक वेल एस्टेब्लिश स्कूल में, क्योंकि ये दोनों का काम फर्क है, रजिस्ट्रार का एक पाथ जो है वो और डिफरेंट है, क्वालिटी का पाथ थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे उसके पास टाइम नहीं है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस का आप बनाएंगे, ये हाईएस्ट टाइम, क्योंकि वो आपने सोली इस पर्पज के लिए रखा होगा तो उसके पास तो टाइम ही टाइम होगा। डायरेक्टर ऑफिस में डायरेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, डायरेक्टर के पास भी टाइम ही होगा। कंपिटेंस जो है डायरेक्टर और रजिस्ट्रार के पास उतनी नहीं होगी जितना कि एक आपके सेंट्रलाइज्ड और कंपिटेंट रिसोर्स के पास होगी। एक्सेप्टेबिलिटी इन अदर एरियाज वो रजिस्ट्रार की इतनी नहीं होगी, और QA हेड जो आपने रखा होगा, QA मैनेजर जो आपने रखा होगा, QA का जो रिसोर्स आपने रखा होगा, उसके भी स्टार्ट में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन डायरेक्टर या VC ऑफिस में ये एक्सेप्टेबिलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पूरे स्कूल को, पूरे इंस्टीट्यूट को हेड करेंगे। अथॉरिटी जो है वो भी रजिस्ट्रार और QA के पास उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी स्कूल डायरेक्टर या VC के पास होगी। कमिटमेंट जो है रजिस्ट्रार, स्कूल मैनेजर के पास वो कमिटमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके अपना एक टास्क है जो उसने परफॉर्म करना है। QA के पास हाईएस्ट जॉब कमिटमेंट होगी, क्योंकि उसका कोर टास्क ही होगा। और डायरेक्टर के पास हाईएस्ट कमिटमेंट होगी, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा इंस्टीट्यूट ग्रो करे।
इसमें क्वालिटी का कल्चर क्रिएट हो, इसकी रैंकिंग बेहतर हो, इसका वेटेज बेहतर हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा एडमिशन आए, इसकी स्किल्स, इसके स्टूडेंट्स की स्किल, इसकी अलुमनाई को जो है अप्रिशिएट करें। अदर इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी किसी यूनिवर्सिटी में मेरे अगर बच्चे गए हैं तो वो यूनिवर्सिटी इसको अप्रिशिएट करे कि इस स्कूल से, इस चेन से जो बच्चे आ रहे हैं, तो वो उनमें एक स्पार्क होता है। सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, रजिस्ट्रार अपने एरिया में काम कर रहे हैं, क्यूए अपने एरिया में काम कर रहे हैं, तो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हाईएस्ट होगी अगेन वीसी और डायरेक्टर को। तो अब कहाँ पे हम बेस करें क्यूए को? अब क्योंकि ये तो हमने देख लिया, टाइम, कॉम्पिटेंस, एक्सेप्टेबिलिटी, किसी जगह पे क्यूए के पास अथॉरिटी नहीं है, किसी के पास रजिस्ट्रार के पास, तो मोस्ट ऑफली आप देखेंगे मोस्टली उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे स्कूल मैनेजर या रजिस्ट्रार के पास इसमें कोई भी इन द लाइन ऑफ दिस स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन आ रही हो कि आप रजिस्ट्रार के पास अब आप क्यूए की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। अब अगेन जो है क्यूए के पास 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसकी फेवर में जा रहे हैं, जो टाइम, कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट। और फिर डायरेक्टर के पास 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसकी फेवर में जा रहे हैं। तो इसका जो बेस्ट एक कस्टमाइज्ड वे में इसका सोल्यूशन है वो ये आता है कि क्यूए को आप अंडर द वीसी ऑफिस के लिए एक बिल्कुल अलग से रिसोर्स आप रखिए कि वीसी ऑफिस में जो वीसी ऑफिस का मैनेजर है, जो डायरेक्टर ऑफिस का मैनेजर है, वो एक सेपरेट होगा, जो स्कूल मैनेजर है वो सेपरेट होगा। तो ये क्यूए जब उसको एक्सेप्टेबिलिटी और अथॉरिटी मिलेगी फ्रॉम द हेड, फ्रॉम द डायरेक्टर, फ्रॉम द वीसी, तो वो ISO 21001 क्वालिटी के टास्क, क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स को ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल डायरेक्टर वो बेहतर वे में लेके जा सकेगा। लेकिन आपके पास सबसे जरूरी काम ये हमने करना है कि हम आज से ही ये सोच लें कि क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपने स्कूल में हमने उसको इनिशिएट करना। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको वो करेगा क्या। उसको अभी से आप टास्क दे दी ISO 21001 का, इसमें आप उसको एवेल्यूएट भी कर लेंगे कि क्या वो 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, 6 मंथ में क्या वो ये सर्टिफिकेशन करवा सकता है, क्या वो सिस्टम डेवलप कर सकता है। तो नॉर्मली इसमें 3 to 6 मंथ लगते हैं। 3 मंथ लगेंगे अगर आप बिल्कुल फास्ट पेस पे करेंगे, तो ये एडवाइजेबल भी नहीं होता कि 3 मंथ्स में आप करें। तो मैं कभी भी ये एडवाइज नहीं करता कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने बिल्कुल कोर टास्क छोड़ के इसमें आ जाए। तो आपको इसमें 4, 5, 6 मंथ एवरेजली इसमें लग जाती है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो 3 मंथ्स में आप इसको कर सकते हैं। अब ये ISO 9001, ISO 21001 हमारे पास 10 मिनट्स हैं अभी हमारा ये सेशन एंड अप होने में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड। इसमें जैसे सर आपने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी, तो मैं भी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और इसको मैंने देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसे रन हो रही है और कैसे उनकी कंप्लाइंस हो रही है और उनके डिपार्टमेंट्स और उनकी जो टीम है वो कैसे वर्क कर रही होती है। अब स्कूल में इसकी कंप्लाइंस करना और उस तरह से क्यूए का डिपार्टमेंट बनाना और फिर जो मैन पावर है उसको मैनेज करना, क्या इसमें हम आईटी को यूज कर सकते हैं? जैसे गूगल फॉर्म्स हैं, जैसे भी मैं शायद आपको भेजूंगा भी कि हम पेरेंट्स को और इसको टीचर्स को हर टर्म में इसकी मदद से करते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास एनालिसिस आ जाते हैं। तो इस पे अगर हम आईटी को इन्वॉल्व करके करते हैं और थोड़ा सा हम थोड़े लेवल के करते हैं तो इसके क्या लाइक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लाइक गूगल फॉर्म्स की? जी बिल्कुल, आप इसमें आईटी की हेल्प ले सकती हैं। लेकिन इसका एक जैसे यूनिवर्सिटीज में भी आपने भी बताया कि आपका भी इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी है, प्रोसेस को आप जानती हैं।
तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़े सॉफ्टवेयर वो यूज़ करती हैं, लेकिन बात वहाँ पे आ जाती है कि इन द लॉन्गर रन जो है, अब आपने गूगल फॉर्म पे बना लिया, लेकिन उसको लीड किसने करना उस पूरी एक्टिविटी को ना, क्योंकि क्वालिटी में फॉर्म्स के अलावा आपने रेटिंग पेरेंट्स की आपने कहा जी वो भी हम उनको सेंड कर देंगे, उसके ऊपर फिर आप देखेंगे कि 1 2 3, या जब आपको ये आफ्टर ईयर, इसीलिए हमारे ये प्रोजेक्ट फेल होते हैं कि इनिशियली उसको हम स्टार्ट तो कर पाते हैं, जब उसमें डेटा बढ़ता है तो हमारे पास उसको कोरिलेट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे रिसोर्सेज हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर अब करेक्टिव एक्शन किस लेना है। मैं एक फर्ज किया अगर डायरेक्टर हूँ, आप डायरेक्टर हैं स्कूल के, आपके पास तो टाइम नहीं है कि अब आप जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनके ऊपर आप जो एक एक डिपार्टमेंट एक एक फैकल्टी मेंबर स्टाफ मेंबर के पास जाएं और उनको कहें कि ये गैप आइडेंटिफाई करें। फिर इसमें फॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब आप फॉर्म वन पार्ट है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, जो आपके बच्चे हैं स्कूल के आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस। तो व्हाट अबाउट अदर 2 पीस कि आपके प्रोसेस क्या स्टेटस क्या है, उसकी असेसमेंट कौन करेगा, आपके पर्सनस की असेसमेंट करेगा कौन करेगा। तो ये स्कूल का जो क्वालिटी मैनेजर होगा उसने ये आपको यही असेसमेंट करके देनी है आपको ना, कि आपको क्वार्टरली असेसमेंट 6 मंथली असेसमेंट। तो स्टार्ट में जिस तरह मैंने आपको कहा रिसोर्सेज मुझे पता है स्कूल्स के पास वेरी लिमिटेड या विद इवन के कई के पास तो नो रिसोर्सेज होती हैं, तो वो स्टार्ट में आप उसको खुद से लेके चलें, और जब आप देखें कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें साथ अपने किसी फैकल्टी मेंबर को उसका टीचिंग लोड कम करके उसको साथ आप अपने एंगेज कर लें। उसके बाद फिर आप जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्वालिटी से रिलेटेड अगर आप समझते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर गया है, उसके क्वालिटी में उसको बिल्डअप करवाएं उसका फ्यूचर जो है, या आप कोई नया रिसोर्स इसके ऊपर अब आप, और इसमें आप स्टार्ट में ये भी कर सकती हैं कि अगर आपके पास अभी इस तरह का नहीं है तो ऑन द ट्रायल बेसिस आप इसमें ये प्रोसेस आउटसोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन आउटसोर्स प्रोसेस के भी बीइंग क्वालिटी में, तो उसमें भी हम उसकी रिकमेंडेशन नहीं करते, क्योंकि कई स्कूल ये करते हैं यूनिवर्सिटीज करती हैं। उसमें जो एक क्रिटिकल प्रिंसिपल आपने देखा था डेटा सिक्योरिटी, उसमें डेटा आपका सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो कंसल्टेंट आप हायर करेंगे अगर वो कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंट नहीं होगा, आपसे उसकी कोई जान पहचान नहीं होगी, या हो भी तो उसमें क्या ये श्योरिटी है कि आपका उसने वीकली बेसिस पे आना है या उसने डेली कुछ टाइम के लिए आना है, तो डेटा किस तरह से आप स्कोर करेंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि क्वालिटी, क्रॉसबी ने जो इंटरनेशनल यूएसए का क्वालिटी गुरु है, उसने एक बुक लिखी है क्वालिटी इज फ्री। उसने कहा कि क्वालिटी फ्री है क्योंकि क्वालिटी इज पे, क्वालिटी पे ऑफ करती है आपको ना, क्वालिटी पे टू यू, कि क्वालिटी अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खुद से क्वालिटी निकालती है। तो क्वालिटी उसने जो क्रॉसबी, वो एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी था, एक वो बिजनेसमैन था, और उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट का वो गुरु भी था, उसमें टीचिंग भी वो करता था। तो उसने अपना पूरी लाइफ का जो हम कहते हैं ना निचोड़ उसने निकाल दिया कि क्वालिटी इज फ्री, क्वालिटी इज विदाउट कॉस्ट, क्वालिटी की कोई कॉस्ट नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये क्वालिटी कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट एक बड़ा खराब कॉन्सेप्ट है क्वालिटी। वो बेसिकली वर्ड है क्वालिटी, जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, COPQ ना, क्वालिटी ऑफ पुअर कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो ये क्वालिटी इज फ्री, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वालिटी खुद से जनरेट करेगा जब आपके 3 P's की वैल्यू इनहेंस होगी, वैल्यू एडिशन उसमें आएगी। तो मैंने तो जहां जहां पे देखा है, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है, तो क्वालिटी इज एक्चुअली फ्री, और ये बड़ा रियलिस्टिक है उसका क्रॉसबी का क्वालिटी फ्री है। जी हमारे पास अब जो इसकी क्लासेस के ऊपर डिस्कशन है आज हमारा, इसको हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि अब क्लॉजेस हैं इसमें, सबसे पहले तो स्कोप से रिलेटेड क्लास है। मिस खालिदा महमूद प्लीज। जी
जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये मुझे थोड़ा सा पूछना था कि जो 5S है वो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में थोड़ा सा और पता मुझे लग सकता है कि मुझे कैसे आप थोड़ा सा और मुझे ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। ये मैं इसमें आपको ये बताया क्योंकि वैसे तो ये 5 जापानीज वर्ड हैं और ये अंडर द डिसिप्लिन ऑफ लीन मैनेजमेंट आता है 5S जो है। और ये बड़े मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दे के जो है ये बताता हूँ कि 5S हाउस कीपिंग का स्टैंडर्ड। अब जापानीज ये कहते हैं आपने आपका अपना वैलेट जो है, आपका पर्स जो है, उसमें से अगर 10 सेकंड में आपने कोई जो डॉक्यूमेंट रखा है, कोई पीस ऑफ पेपर है, जिसका आईडी कार्ड है, जिसका फोटो है, तो कुछ लोग बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। तो 5S में भी यही ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आपको अपने पर्स में से विद इन 10 सेकेंड वो डॉक्यूमेंट, वो पिक्चर, वो आपकी फोटो, कोई आपने जो की रखी है, कोई आपने कार्ड रखा है, किसी का विजिटिंग कार्ड था, कोई और कोई भी पीस ऑफ पेपर आपने रखा है, अगर 10 सेकेंड में या 5 सेकेंड में आपको मिल गया तो यू आर ऑन 5S। अगर नहीं मिला तो यू नीड इम्प्रूवमेंट। अगर आपने जिस तरह हमारी जो टेबल हैं, उनके ड्रायर जो हैं, हमारी अलमीरा जो हैं, हमारे डेस्क जो हैं, उनका बुरा हाल होता है कि वो अगर हम दराज उसका खोलते हैं तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि जिस तरह अभी इसमें सुनामी है। अगर आपको अपने दराज से विद इन 10 सेकेंड रिक्वायर्ड आपको एलिमेंट मिल गया है तो यू आर ऑन 5S। तो ये 5S का बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपने एक डॉक्यूमेंट ढूंढना है किसी फाइल में से, तो उसके लिए 30 सेकेंड है कि अब आपने 30 सेकेंड में आपने अपने स्टाफ को कहा है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर वो 30 सेकेंड में आपके पास लेके आ सकता है, बिल्कुल उसके साथ ही आपके साथ भी बैठा है, और हमने ये देखा है बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो डॉक्यूमेंट वो फिर ढूंढते ही बेचारा रहता है, और फिर हम कहते हैं यार छोड़ो फिर ना, उसका बता दो उसमें था क्या लिखा हो, उसमें चीज़ क्या थी। तो वो मिलता है फिर उस वक्त है जाके जब उसका कोई यूज़ नहीं रहता है, वो अगले वीक में जाके मिलेगा। तो फाइल में से डॉक्यूमेंट सर्च करना है, वो 30 सेकेंड है। तो ये 5 वर्ड्स हैं कि आपने हर वर्ड के आगे आगे फिर उसके आइटम्स हैं, उसकी क्लासेस छोटी छोटी, उसमें आप कह लें क्वेश्चंस हैं कि क्या आपने सॉर्टिंग की है, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है, उनको सेट इन ऑर्डर किया है, उनको जब आपने क्लीनिनेस करनी है तो जैपनीज कहते हैं इसमें उसका जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट ये है कि उसको इस तरह से उसमें करें उसको क्लीन कि उसकी ओरिजिनल शाइन, जब वो आपने इक्विपमेंट लिया था तो उसका कलर था वाइट, और जब आपने उसकी कोई सफाई नहीं की या बिल्कुल उसके साथ कैजुअल सा आपने रवैया रखा तो मशीन, वो टूल जो था, आफ्टर सम ईयर वो ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। तो जब आप उसकी सफाई करें तो उसकी ओरिजिनल कलर और उसकी ओरिजिनल शाइन को आप जो है ना उसको सर्च करें अपना, और फिर है सस्टेन कि इन प्रैक्टिसेस को आपने सस्टेन करना है, और फिर सस्टेन और मेंटेन करना है, इस लोगों के अपने उसकी हैबिट बना देनी है। तो ये वो 5S है। जी, तो आज का हमारा सेशन का टाइम जी 9 बजे तक था, तो वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कल 7 PM पे हमने दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी जो क्लासेस हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है कि ISO का 21001 का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, क्या इसकी मेजर क्लासेस, उसमें क्या सब क्लासेस हैं, ये हम कल फिर डिस्कस करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन। Thank you very much for your participation.